Hello, hello, hello. Welcome to the fifth session on building stamina and endurance. On the face of it, it may seem like a very inane issue, but trust me, when it comes to test taking or actual CAT performance, one of the best things that you can do is building stamina because far too often people end up making this people end up see being clear on your theory, being clear on your is in whatever you need to study for CAT, that is fine. Along with that, there are a lot of allied activities that you need to be working on. The prime among them being building endurance. It is a 2 hour test. You being able to concentrate, focus for 2 hours straight, especially in this day and age where our attention spans have been drastically impacted by reels and shorts and whatever is the smallest unit of attention grabbing thing that you can find on social media. It is extremely important we do it appropriately. So let's get to increase volume. I cannot increase volume. This is how I speak. This is the maximum volume that can work. Okay, let's see. First, I am Arvind. I have been teaching for 13 plus years now. When I say teaching, I mean CAT-based teaching. Otherwise, I've also taught for undergraduate और मतलब अपने स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम पे भी हम पढ़ा के काफी जिंदगी बिताए थे. I'm a mentor at Anastas Academy and I'm a commerce graduate. I'm not from science background, I'm from commerce background. So, Dishu, what exactly is meant by endurance? And what is test taking and analysis mechanism that helps you build endurance? And outside of study activities, things that you have to take care of outside of you sitting down, practicing, taking tests, that will ensure that you have that endurance and stamina built up so that when you walk into the exam hall, these factors don't come to ruin your test performance. Okay. Simple thing, test taking endurance. See, 4 primary exams that I'm guessing most of us would be taking anyway are CAT, XAT, SNAP, and NMAT. Some of us may also be taking CMAT. Some of us may also be planning to take क्या था? CUET-PG for TASE or whatever other exams, JBIMS, MHCT, and so many other exams that happen. But these 4 are the common national level exams that people take. Now, format wise, CAT is a 2 hour test split into 40 minutes, 3 sections. VARC, DILR. These are not information points that I expect you to be surprised by. These are things that I'm fairly certain most of us anyway know. QA, 40 minutes each. For that, we have 175 minutes in the initial section. Initially, we have 175 or 160 minutes, something, 165 minutes, followed by a 25-minute section on essay writing and GK and whatever happens after that. SNAP is a 1 hour test. NMAT is also a 2 hour test. Now, most of us, I'm guessing, would be focusing on CAT these days because when we come closer to these exams, it is only then our focus shifts there. Right now, most of us would be focusing on CAT. Now, when you're taking CAT, if you've taken any mocks or any sectionals or any tests so far, you would have realized the usual rate of success that you have, when you're taking a sectional or when you're practicing versus your performance in mocks, it is drastically different, or at least it is significantly different, not drastically necessarily, but it is significantly different simply on account of the fact that when you're studying, we tend to study in short bursts. People study for 30 minutes, 30 to 40 minutes they study, then they take a 5-minute break, then they study for again 30 odd minutes, then they take a 10-minute break, then they study for 20 minutes, then they say, oh, I have been studying for so long, let me finish the studying for the day. And then the required amount of as in muscle memory and stamina that you need to build up to sit for 2 hours straight and concentrate throughout this entire duration is not necessarily built up. So first thing you would have to do is, see, taking breaks in between is fine.
taking breaks in between is fine, but ensure that whenever you're sitting down to study on your standard schedule, in your standard schedule, ensure that you sit down for at least 2+ hours in one sitting. At least 2+ hours in one sitting. Because if you don't sit down for 2+ hours, your ability to focus for long stretches of time is immediately impacted. Something that you would have noticed even when you're going through social media pages, when you're scrolling through stuff, there are certain reels that you view for a longer duration of time, but then there would be certain reels that you see for 3 seconds, you move on. Basically, your brain is not accustomed to focusing on things for an extended period of time, which is one of the greatest challenges when it comes to RCs, or even when you're taking the QA section, the last section of a full length mock. By that time, our brain is so fried, our brain is so down in the dumps that we are either hoping for, यार खत्म करो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को और टेस्ट नहीं देना, I am bored, I am tired, I don't want to do it anymore, or we start making careless errors. So whatever study schedule you have, make sure that you get accustomed to sitting down for more than 2 hours at a stretch. Because that way, if you practice for, as in, think of it this way, if you're going to run for a 10K run, you cannot be running for 2K and taking a break. Then you cannot be running for 3K and taking a break, and then running for 4K and taking a break, and then running the last K. You have to run 10K in one go. And in fact, in order to be good at running 10K in one go, you need to ensure that you run for 10K plus. For any runner, for any sort of activity, whatever is required, the absolute minimum that is required, the practice should be for slightly more than that. So that on the actual test day, on the actual day of solving and everything, you do not have the ability to, as in, you don't tend to fall into the trap of making mistakes of fatigue, making mistakes of carelessness, because your brain is not working at an optimal capacity. Test taking endurance is also a major reason why you would also see there would be people who do exceedingly well when it comes to classroom discussions, when it comes to solving questions willy-nilly here on groups and here and there on different groups. But when it comes to taking a full-length mock, when it comes to taking a test, then their performance doesn't translate. I'm guessing that would be true for a lot of us, which is why we are here in the first place. So make sure you sit down for more than 2 hours. This is more to do with practice, but the endurance part of it is your brain should be accustomed for focusing for more than 2 hours at least at one stretch of time. By the time XAT rolls around, it is going to evolve into an even bigger problem, because the XAT paper is even longer. XAT, in CAT, we are very, very blessed that they tell us how much time to dedicate to each section beforehand. They give us 40 minutes here, they give us 40 minutes here, they give us 40 minutes here. In XAT, you have to make that call on by yourself. How much time are you giving to English? How much time are you giving to decision making? And how much time are you giving to quant? Because there your movement has to be monitored, your decision making about let's move away from something, let's give time to something. The number of questions in that, to the best of my memory, is 75 in the first section, 75 questions in the first section, and 175 minutes. Of these, around 26 are in English, 21 or 22 are in DM, and 26 odd are in quant. 26 to 28 are in quant. Some split of that nature happens every year. So deciding when to shift from one section to the other, or sitting down for 3 hours at a time, as soon as CAT gets over, get into the habit of sitting down for 3 hours at a time. Now, in order to build up this test taking endurance, of course, in the practice phase, when you're covering theory, try to sit down for 2+ hours. Now, see, I understand there will be constraint for people who have, as in working people or people who don't have a lot of time available throughout the day to make humongous times. If you're preparing only for CAT, there are some of us who are preparing only for CAT at home. It would be a sin for you to study for anything lower than 4 hours at a stretch in one go. 4 घंटे से कम अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, you are not taking advantage of the fact. देखो, पढ़ाई तो करनी है. You have to study in any which way, however you can potentially. पढ़ाई तो आपको करनी है. But the people who are working, they have paucity of time. You have excess of time.
when you have excess of time, you have to ensure you utilize it in a manner that maintains the advantage you have over the other people. तो जो लोग काम नहीं कर रहे, जब हम वीकेंड पे पढ़ते हैं या जब हम रात में पढ़ते हैं या जब हम सुबह में पढ़ते हैं, तो फिर ठीक ठाक किसी तरीके से 2+ आवर्स तो खींचना ही खींचना है। जो लोग सिर्फ कैट की तैयारी कर रहे हैं, भाई 4 आवर्स से कम का तुम्हारा एक सिटिंग सेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, even now understand, the day you try to change it, let's say right now you are accustomed to studying for 40 minutes at a stretch and then taking a break. अगर आप चेंज करना चाहेंगे, it will be painful. But what you can potentially do is that 5 minute break or 10 minute break or whatever break you take, हम थोड़े रील्स घुमा लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर देते हैं. Try to shorten that down, and instead of going for mentally stimulating activities, which would be watching reels and something जिसमें दिमाग लग रहा है, एक गिलास पानी पी लो, या फिर एक अपने घर के एक एंड से दूसरे एंड तक वॉक करो और वापस आके बैठ जाओ. Do activities that are absolutely bland, that do not require mental attention or energy, और फिर वापस से कंटिन्यू करना चालू करो. That transition, in the transition phase from sitting for lower amount of time to longer amount of times, try to include activities that do not take up a lot of brain space. Now, once the theory learning part of it is over, for some of us that would already be over. अभी हम लोग सीधा सीधा मॉक से खेल रहे होंगे. For you people, test taking and analysis mechanism. See, there are two kinds of tests that you would be getting. One would be live mocks, जो अभी वीकडे पे मतलब कभी आया और उसके 2-3 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है, उसका एनालिसिस आता है, सब कुछ आता है. 2-3 वीक्स लगते हैं उसका नेट पता चलने में क्या हुआ, क्या the answers and everything are visible very very late. For others, there are take home mocks बोलते हैं या क्या बोलते हैं, SAM cats. Within MCAT we call them SAM cats, within IMS we call them take home mocks. CL के अंदर they are flexi mocks, लेकिन वो भी मतलब it's a mix of live mocks and take home mocks. वहां पे काम क्या करना चाहिए आपको? Whenever you're taking a mock, those sorts of mocks, not the live ones, but the mocks that are take home and for which the analysis can be seen immediately. You take your test for 2 hours. Immediately after the test, a maximum of a 10-minute break. And instantly after that, do the QA or DILR analysis right away. Now, depending upon how proficient you are and how many errors you make and what is your level of decision making when it comes to selecting questions and everything, this can range anywhere between 3 to 6 hours. But try to do that in one go. The idea behind this being, if you're training your brain only to work for 2 hours, when the last stretch comes, final 15 minutes, final 10 minutes, the brain would already be expecting, अच्छा अभी काम खत्म होने वाला है. The end expectation would start becoming very, very prominent. And on account of that, the efficiency levels will dip. But if you get accustomed to sitting down for, let's say, 5 hours, when you become extremely proficient, fatigue will not be a factor at the 2-hour mark. Even at the 2-hour mark, your brain would be operating optimally, because the fatigue marker or the fatigue impulse that gets generated in your brain would only happen once you've crossed the 4.5-hour mark. For the 2 hours in the exam, I'm sure you've heard of a lot of stories of people who said, अगर हम एक और क्वेश्चन कर लेते क्वांट में, अगर हम एक और सही यहाँ कर लेते, अगर हम एक और सही वहां कर लेते, वो गिव अप करने का मोड या वो not being able to get that one extra question because my brain had been fried, that happens mostly because people in those 2 hours within the last 40 minutes of the section, quant section especially, they tend to not to focus, they tend to not have high levels of concentration, thereby reducing their ability to generate returns from whatever time they're spending on solving questions. इसमें मतलब whatever number of tests you've taken, ध्यान देना, take a QA sectional, whatever institute you're studying at, जहाँ का भी, take a QA sectional and मतलब take 3-4 QA sectionals and take a full length mock, अपना full length mock का performance का around 3-4, और compare करना the incidence of
the incidence of careless errors that would happen in the quant section would be insanely high when it comes to full length mocks compared to QA sectional. Agar QA sectional, let's say you are very gifted at quant and you end up getting 15 correct and 4 wrong on an average in sectionals, that number will change to, let's say, 12 correct and 7 wrong in a mock because आखिरी का टाइम आ गया. So in order to overcome this, ये टेस्ट टेकिंग के टाइम में जो फटीग का फैक्टर रहता है, इसको ओवरकम करने के लिए as soon as your test is over, 10 minute break, 10 minute break में पानी पी सकते हैं, लाइट स्नैक खा सकते हैं. एवरीबडी एल्स हु इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जिनके साथ हम मॉक स्कोर शेयर करते हैं, शेयर कर सकते हैं. इवन इफ देर इज नोबडी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ जिसके साथ हम मॉक स्कोर शेयर करते हैं, आइडेंटिफाई वन पर्सन जिसको भेजना ही भेजना अपना स्कोर. वी आर पीपल, वी आर क्या बताएं, बीइंग्स ऑफ ह्यूब्रिस. अगर बेइज्जती हो, देख दो सिचुएशन में आदमी पढ़ता है. एक तो कल एग्जाम हो तो बहुत पढ़ाई कर लेते हैं हम. दूसरा, अगर बेइज्जती होती है तो हम पढ़ लेते हैं. व्हेन वी टेक अप मोर ऑफन देन नॉट नंबर थोड़े खराब आएंगे. तो फिर if we keep that to ourselves, it does not generate the sort of energy and fuel for doing even better the next time unless it becomes a matter of public record किसी और बाहर वाले को. You don't necessarily have to insult yourself in by great quantity. हर किसी के साथ नहीं शेयर करना है, but people that you know who genuinely care for you, people who are genuinely interested in how you're doing, whether improvement is happening or not, उनके साथ शेयर कर लेना. ऑल्सो पीपल हु हैव सम डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. लेट्स से अगर आप, माय मदर हैज नॉट इवन स्टडीड, लेट्स से क्लास 10th भी नहीं पढ़ी हुई है मेरी मम्मी, तो उनको बैठ के अभी हम अपना कैट स्कोर का स्प्लिट विट बताएंगे तो उनको कुछ नहीं समझ में आएगा क्या बातें कर रहे हैं. somebody who understands the entire thing somebody who understands the entire thing but also is genuinely, क्या बताएं, committed towards making sure that you get it to, as in you get it, you are improving for that with that person, please share it. Also, this analysis bit or this exercise will only happen with mocks for which the analysis is तुरंत available. It would not be with the live mocks. Let's say IMS का अगर आपने live mock का पैक लिया हुआ है तो उसी में टेक होम मॉक्स करके कुछ रहता है जिसका एनालिसिस इमीडिएटली अवेलेबल है. या आपने टाइम का मॉक पैक लिया हुआ है तो वहां पे सैम कैट्स करके, सिम्युलेटेड ऑल इंडिया मॉक कैट्स करके, सैम कैट, तो उसमें एनालिसिस इमीडिएटली अवेलेबल रहता है. वहीं पे ये हो पाएगा. सीएल के अंदर फ्लेक्सी मॉक्स में भी 2-3 दिन लगे जाते हैं, या प्रॉक मॉक में तो 2-3 दिन लगे जाते हैं, तो वहां का अलग ही लोचा है. बट वेरेवर यू कैन, इवन इफ लेट्स से यू आर टेकिंग लाइव मॉक्स फ्रॉम आईएमएस, वहां पे तो एज इन टाइम के अंदर ये दिक्कत रहता है, इफ यू मिस अ मॉक इट विल ओनली गेट ओपन इन अक्टूबर. सीएल के अंदर इफ इट्स अ फ्लेक्सी मॉक इट विल रिमेन ओपन even if you miss it right now, but proc mock raha, it will only get opened in October at a later point of time. So let's say if you're taking an IMS ka mock and you don't have take home wala kaam, you only have live mocks, perhaps wait for the window to get over and then take that mock, क्योंकि window जैसे ही एग्जाम खत्म करोगे तुरंत रिजल्ट और एज इन सॉल्यूशंस वगैरह अवेलेबल रहेगा. This exercise is extremely beneficial. You would need to do this roughly 15 to 20 times to get attuned to sitting down for long stretches. You can of course break this down. अगर QA DILR नहीं करना है तो हम VARC QA कर लेंगे, हम DILR VARC कर लेंगे, but at least two sections. अच्छा, all questions, everything, there is a section at the end when I talk to people. उस टाइम पे जो पूछना है पूछ लेना. अभी चिल करो भाई लोग, अभी बीच में please let's not go off into other tangents. At the end we will talk of any and all questions that you have, not necessarily related to what we are covering in the session here. Now, apart from this, ये समझो, ये endurance, stamina, these are very physical fitness वाले terms. And for physical fitness, remember, in order to build this endurance, in order to build this stamina, you would perhaps hear inputs on this when cat comes closer. उस टाइम पे लोग सारा ज्ञान देने लग जाते हैं. Get accustomed to taking cat mock in your slot. Get to a regular sleep schedule. Get to eating healthy, blah and blah. But understand, if those things are wonderful, if those things are genuinely beneficial, and they are, I'm not questioning the veracity of the help that they provide. I'm saying if they are wonderful, it should not happen only towards the end of the season. No, what you should be doing outside of class activities in order to ensure that your brain functions well, your
concentration levels are high, all the things that you do are appropriate, you have to, of course, study. You have to cover the theory portion. But then do not sacrifice on exercise. Do some sort of physical activity. Of course, not at the cost of theoretical understanding, not at the cost of the studying portion that you need to do. But those of us who remain physically fit, you will perhaps have an edge over others because sitting down for long periods, concentrating on things would be easier for you. Maintain a regular sleep schedule. One of the greatest myths in the world is everyone needs to sleep for 6 to 8 hours. 6 to 8 hours वाला काम, as in 6 to 8 hours वाला काम वो आदमी कर सकता है जिसकी जिंदगी में चीजें सॉर्टेड हो. अगर अपने को अपनी जिंदगी में चीजें सॉर्टेड नहीं है, अपने 5 घंटे में भी काम चला सकते हैं. स्पेशली एनीवन हु क्लेम्स, माई गो टू मूव फॉर एनीवन हु एवर क्लेम्स इज मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता या आई डोंट हैव इनफ टाइम अवेलेबल. I follow it up with how many hours do we sleep in a day, and invariably those people are sleeping for 7 to 8 hours. So they're choosing to sleep instead of studying. 5 hours is more than enough. But when I include sleep here, I mean sleep at a regular time. If you're sleeping from 12 to 5, sleep 12 to 5. Don't make it one day I will sleep 2 to 7, one day I will sleep 11 to 4, one day I will sleep at some other time. Try to sleep at regular times. Basically, make it into a process, make it into an algorithm. At 12 o'clock, if that is the usual time you go to sleep at 12 o'clock. If you go to sleep at 2 o'clock, go to sleep at 2 o'clock. It doesn't matter if you sleep at 5 a.m. in the morning. Some of us have that tendency. We are night owls. So at 5 a.m. we go to sleep in the morning and we wake up at, let's say 9 a.m. or 9:30 a.m. or 5 or 10 a.m., whatever time. But make sure that is the same schedule you follow. Make sure the regular timings that you do. Acha, when you read up more about this, at night time, our body is deriving more benefit out of sleep. So I would not recommend somebody sleeping at 5 a.m. But then let's say you have a night-based job wherein you have to sit through your entire duty roster and then you can only sleep at 5 a.m. So you can only sleep at 5 a.m. All of these are ideal world recommendations. With the constraints that you have to make sure whatever best you can make out of it. Try to create a timetable. What I mean by exercise, what I mean by sleep is try to create a regular timetable. I'm not saying that it has to be followed to the T, but stick to the timetable to the extent that you can. If I'm going to sleep at one particular time, I'm going to sleep at one particular time. If I'm going to eat at one particular time, I'm going to eat at one particular time. Make sure that you don't keep chopping and changing, because when chopping and changing happens in your timetable, very often what would happen is you would end up forgiving yourself from straying from the main objective very often. A lot of us have a lot of gusto when it comes to CAT prep at the beginning. In the month of, let's say, January and February, इस साल हम फोड़ देंगे, इस साल हम इतना मेहनत करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे. 1 to 2 weeks into the training, like, अभी तो CAT बहुत दूर है ना, अभी हम थोड़ा ये कर लेते हैं, अभी ये मेरा दूसरा प्रायोरिटी है, फिर हम बाद में CAT prep पे ध्यान देंगे. और फिर वो बाद में इतना पीछे हो जाता है. बाय द टाइम जून जुलाई रोल्स अराउंड, ओ इतना बचा CAT, हमने अभी तो कुछ किया ही नहीं है. See, you are a very active participant in what is happening in your life. You are not a passive recipient of things falling around you. Outside things do have some sort of influence, but then very often people frame it as if the external factors are the ones ruling our life instead of us taking active decisions in making it better or making it bad. You can do so much more if you decide to do so much more in a very, very structured fashion. And the final thing, stress management. देखो कैट की पढ़ाई is very, very emotionally charged, क्योंकि हर मॉक के बाद आप जीतते हैं, आप हारते हैं. मोर ऑफन देन नॉट आप हारते हैं, आप जीतते कम है लेकिन आप हारते ज्यादा है. और फिर उस टाइम पे however much you get the advice of being stoic, don't focus on marks, जितने भी नंबर आए फर्क नहीं पड़ता, एनालिसिस पे ध्यान दो, सीखने पे ध्यान दो, अपना बेस्ट करने की कोशिश करो. We are human beings, we get influenced by numbers quite a lot. मतलब this is something that happens in cricket very often. एक बॉलर ने एक बॉल डाली, उस पर छक्का पड़ गया, सब चिल्लाने लगता है गंदी बॉल थी, ये यहाँ क्यों डाल दिया, वहां क्यों डाल दिया. अगली बॉल उसने वही बॉल डाली, वही जगह पे पिच करी, वही लाइन, वही लेंथ,
लेकिन इस पे बैट्समैन ने मिस हिट किया और वो आउट हो गया। अरे क्या अच्छी बॉल थी, क्या सब कुछ बढ़िया था। We don't judge actions. We don't judge actions in isolation. We judge the actions by the results that they obtain, which is not very fair. So उसके चक्कर में नुकसान क्या होता है? Lot of stress gets built up. Lots of मतलब किसी को स्ट्रेस होगा कि भाई अगर कैट अच्छा नहीं गया तो अगले साल सड़ू जॉब में कंटिन्यू करना पड़ेगा। किसी को स्ट्रेस होगा कैट अच्छा नहीं गया तो हम एक साल से घर पे बैठे हैं, मेरा गैप बढ़ता जाएगा। किसी को स्ट्रेस होगा my parents are getting slightly older, I have to take financial responsibility of the family. If I don't crack cat and get into a B school, the time by which I can rid them of the responsibility of the household will get even longer. किसी के पास स्ट्रेस होगा कि कुछ लोगों के माँ बाप ही बहुत चीता टाइप होते हैं कि भाई आईएएस आईएफएस पता नहीं क्या क्या बने रहते हैं, तो बच्चे को टेंशन रहता है आई हैव टू एटलीस्ट लिव अप टू द फैमिली रेपुटेशन। एवरीबडी हैज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रेस। किसी को स्ट्रेस होगा अगर इफ आई डोंट गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली वाइबल क्विकली, परहैप्स द पैरामोर आई हैव कोटेड ओवर लॉन्ग स्कूल टाइम से मेरी जो गर्लफ्रेंड थी या मेरा जो बॉयफ्रेंड था, आई वुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू गेट मैरिड टू देम। whatever be your trigger, whatever be your motivation, उस स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम पे बस ये काम करना। You need to have a good ecosystem of people who genuinely care for you, regardless of how good or bad a person you are. You would have one or two friends. You would have one or two friends. Do not cut yourself off from these people. At the same time, do not let them dominate your world. Take time out in a week, take time out in a fortnight. जब आप कैचअप करेंगे लोगों से, आप लोगों से बातचीत करेंगे, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, लेट इट बी ए हाफ आवर वीडियो कॉल। गूगल गूगल कॉल तो आई थिंक गूगल हैंगआउट आई थिंक फ्री ही है, या आप अब बिकॉज यू पीपल आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड द यंगर जनरेशन, यू वुड हैव व्हाट्सएप कॉल्स, उसमें भी मल्टीपल लोग ज्वाइन हो जाते हैं, या फेसबुक कॉल्स भी होती हैं, कुछ होता होगा, या इंस्टाग्राम कॉल्स भी होती हैं, कुछ होता होगा, आई डोंट नो। But catch up with your friends and share whatever concerns you have, because when you're in the cat world, we are in a bubble, in a extreme bubble. यहाँ पे हमें लगता है दुनिया खतरनाक ऊपर नीचे जा रही है, but the things that are happening here, are very, very mundane. And when you take a step outside, when you look at what else is happening in the world, then you start to realize, हाँ यार बाकी जगह भी दिक्कतें, अपने यहाँ भी दिक्कतें हैं, बाकी जगह भी अच्छा चल रहा है, अपने यहाँ भी अच्छा चल रहा है। Do not fall for the trap of thinking the world is revolving around cat, because एक तो कैट देने वाले लास्ट ईयर का नंबर भी अगर देखो 2.88 लाख, इट इज परहैप्स वन ऑफ द लोएस्ट अटेम्प्टेड नेशनल एग्जाम्स दैट गेट्स एज मच भाव। भाई नीट का एग्जाम देख लो, आईआईटी जेई का एग्जाम देख लो, एसएससी का एग्जाम देख लो, आईएएस का एग्जाम देख लो, यू हैव पीपल इन एक्सेस ऑफ डबल डिजिट लैक्स में काम चल रहा है। यहाँ पे 3 लाख नहीं पहुंच रहे। लास्ट ईयर का हाईएस्ट नंबर एवर 2.88 समथिंग लैक्स पे लोग हैरान परेशान हो गए थे, इतने लोगों ने कैसे पेपर दे दिया। दुनिया इससे बहुत बड़ी है बाहर। You are going to have friends who are perhaps doing a job and are stressed. You are going to have friends who are going to be from other domains altogether. कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आई डोंट नो तुम्हारे कितने फ्रेंड्स होंगे जो भी एक्टिंग कर रहे होंगे, बिकॉज यू पीपल आर यंग, मोस्ट ऑफ यू वुड बी ऑन द बीटन पाथ। एक जॉब करते हैं या कुछ एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, या ये करते हैं वो करते हैं, हर किसी का अपना चल रहा होगा। You need to have a good ecosystem of people who support you. You need to have a good ecosystem of people who genuinely care for you, and genuinely care for you in the sense they are happy when you do well. Keep That does not mean they will always be kind to you. That does not mean they will not give you honest feedback if you do something stupid. But you need to have a good ecosystem of people around you. क्योंकि एक चीज है फिजिकल हेल्थ, which is taken care of by exercise and sleep and timetable. एक चीज है mental health, and mental health के नाम पे you don't need to be at peace with who you are and what your identity is, उतना नहीं, but having an half an hour गप्पो का session with people that you like is very, very relaxing. It is very, very therapeutic. हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार ये पक्के से कर लेना, that will ensure for the rest of the time that you're studying for CAT, for the rest of the time that you're dedicating yourself to this cause, you will have more energy, you will have more focus, you will have more attention. And that is all that I had to say for this week. Now, if you have something related to this,
what was mentioned in the presentation today, you can ask, or if you have something else, you can ask. I would prefer if you raised your hand. I would prefer if you raised your hand, and I will ask you to unmute, and then you can ask away your question. Otherwise, you can of course send it in chat, but I would prefer if you raised your hand. Okay. Yes. Ayush, go on. Hi, good evening, sir. Sir, actually, the problem with me is that whenever I solve a DILR in a day, I get so drained out. Like whenever I solve 2 to 3 sets of DILR in a day, it's become very इतना ड्रेन आउट हो जाता है कि उस दिन QA और VARC में फोकस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अच्छा. तो DILR सर let's say you attempt 3 DILR sets in a day. एक दिन में 3 DILR. कितना टाइम पढ़ाई किया? यस सर अप्रोक्सीमेटली टेक्स मी 3 hours and 3.5. मैं ब्रेक में लेता हूँ. जैसे एक DILR सुबह किया, फिर DILR दोपहर में, फिर DILR रात में. बहुत बढ़िया. तो अब ये आर वी वर्किंग कि आर वी वर्किंग और आर वी ओनली प्रिपेयरिंग फॉर कैट? सर आई एम ओनली प्रिपेयरिंग फॉर कैट. क्या बात है. तो दिन में बेटा 3 घंटे में हमारी पढ़ाई खत्म हो जा रही है. नहीं सर, मैं मतलब QA और BARC भी करता हूँ, बट उतने एफिशिएंसी से नहीं कर पाता जितना कि LRDI और उसको देते हैं. उसको करने पे बहुत ड्रेन आउट हो जाते हैं. तो एक बहुत LRDI. बढ़िया चीज कर सकते हैं. ऐसा करते, सुबह का टाइम अपने पहले 2 घंटे का क्वांट पढ़ लेते, क्वांट का प्रैक्टिस कर लेते हैं. फिर दिन का टाइम अपने 2 घंटे VARC कर लेते हैं. फिर शाम के टाइम में अपने 3 घंटे का वॉट एवर स्लॉट वी हैव टू डेडिकेट, वो हम LRDI कर देते हैं. दिस इज ओनली स्टिल 7 hours इन अ डे. when you are only preparing for CAT, 7 hours in a day is very very manageable, no? ये यस देख, सर. अगर अगर अपने को LRDI करने से मेंटल ट्रेनिंग हो रहा है, साथ के साथ देख ड्रेनिंग हो रहा है. दैट इज द एंटायर रीजन व्हाई दिस प्रेजेंटेशन और दिस टॉपिक वाज टेकन अप इन द फर्स्ट प्लेस. क्योंकि अपने वी आर नॉट अकस्टम्ड टू सिटिंग डाउन फॉर लॉन्ग पीरियड्स. इवन जब हम क्वांट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या हम VARC प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम बीच में काफी ब्रेक्स लेते हैं ना. यस सर. तो वही आदत बदलनी है अपने को. एक बार में लंबे लंबे ड्यूरेशन के लिए बैठने की आदत डालनी पड़ेगी. क्वांट का एक सिटिंग में कम से कम 50 सवाल करते, वो नो सर. आदत बनानी पड़ेगी कि एक बार में कम से कम 50 सवाल करो. इट डज नॉट मैटर कि इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुछ भी है, एक बार में 50 सवाल करो. VARC का एक बार में 6 6 7 7 RC करने की आदत डालो. एक बार में पैराजंबल्स का 10 10 सवाल निकालो. उससे देख, एबिलिटी तो एबिलिटी है, वो तो प्रैक्टिस आएगी ही. एक बार में लंबा ड्यूरेशन तक बैठने से ना ब्रेन को आदत पड़ती है. साथ के साथ ये जो 3 DILR वाला गेम है, ये जो 3 DILR वाला गेम है, ऑनेस्टली बता, 1 महीना भी हुआ है हमें 3 DILR पर डे करने का? यस सर, मेरा हो गया 1 महीना. लेकिन मतलब नहीं, कंसिस्टेंट. 1 महीने से हर रोज हम 3 DILR सेट्स कर रहे हैं. यस सर, ऑन एन एवरेज 3 LRDI का सेट कर लेता हूँ. भाई 1 महीने से रोज तुम 3 DILR सेट कर रहे हो. 1 महीने से एवरी डे यू आर डूइंग 3 DILR सेट्स. यस सर. तो फिर 1 महीने से वी आर ड्रेन्ड एंड वी आर नॉट एबल टू एफिशिएंटली स्टडी VARC एंड क्वांट साइमल्टेनियसली. यस सर. ओके. आई फाइंड क्योंकि दैट आई फाइंड दैट हार्ड टू बिलीव. क्योंकि 1 महीने तक सर अगर बिकॉज अरे सुन, आई विल गिव यू माय व्यू, उसके बाद तुम अपना बताना. ये है, इफ यू हैव डन दिस फॉर 1 month, बाय नाउ इट शुड हैव बीन इजियर. क्योंकि 1 महीना तक अगर इफ यू हैव बिल्ट अप दिस हैबिट बिल्डिंग कि हम 3 3 काम कर रहे हैं, इट शुड हैव बीन इजियर. बट देन अगेन, perhaps the longer duration stretch that we are not going for in one go, maybe that is holding you back. वरना 1 महीना अगर लॉन्गर मतलब 3 DILR सेट पर डे हम कर रहे हैं, तो अब तक इट वुड नो लॉन्गर बी दैट मच ऑफ अ कंसर्न. अब तो आदत पड़ गई है, 3 घंटा तो लगता ही है, बट कोई बात नहीं, बाकी चीजों पे ध्यान भी लगा देंगे. सर मैं 3 घंटा आता स्ट्रेच नहीं करता ना. मतलब 1 घंटे DIR हाँ वो सुबह का तुमने एक क्वेश्चन बताया किया. भाई, एक सुबह एक दिन एक रात, मतलब बेसिकली हाँ. ब्रेकफास्ट लंच डिनर के नाम पे LRDI सेट चल रहा है. यस सर. और QA और VARC वो साइड लाइन हो जाता है बिकॉज कब मतलब वो कर ही नहीं पाते क्योंकि DIR में इतना दिमाग लगाना पड़ता है, फिर भी क्रैक नहीं होता, तो वो साइड लाइन हो जाता है. इसलिए मैं पूरा अच्छा दिन नहीं, उसको एक बात कैसे बता, मैनेज एक करूँ. एक, एक बात बता, LRDI में इतना दिमाग लाना पड़ता है फिर भी क्रैक नहीं होता, क्वांट में तो सब हो जाते नहीं. हैं ना? मतलब मैक्सिमम सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहता है तो हो जाता है. भाई सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहता है, LRDI में सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहता है तो नहीं होता है क्या? सबसे फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है. भाई LRDI में सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहता है तो हो जाता ना. हाँ, हो जाता है. अच्छा, VARC में सब सही हो जाता है क्या? सर नहीं सर, सही नहीं होता. हम ये बोल रहे, देख तेरा फ्रेमवर्क फॉर रेफरेंस ये
LRDI is known for having unconventional sets, is known for having, as in it is very difficult to categorize topics within LRDI. क्वांट के अंदर फिर Yes. भी टॉपिक्स कैटेगराइज हो जाते हैं, अंग्रेजी के अंदर फिर भी ये आरसी है, ये पैराजम्बल है। एलआरडीआई के अंदर ये किस टॉपिक का है वही नहीं पता चलता, जिसके चक्कर में Yes. you need to have multiple logical setups running in your brain simultaneously. You have the same problem when it comes to the other sections. वहां पे भी जब नया कुछ आता है तो अपने फंसते हैं, बट उस चीज को हम उतना कंसर्न नहीं मान रहे क्योंकि वो उतना अपेरेंटली पता नहीं चल रहा। ये लंबा बैठने की बात है और ज्यादा प्रैक्टिस करने की बात है। इट इज नॉट अ कंसर्न दैट यू शुड हैव, एज इन दिस इज नॉट समथिंग दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नॉर्मल कंसर्न है और प्रैक्टिस करेंगे रेंज में आ जाएगा, दिक्कत नहीं। सर नहीं समझे आप क्या बोले। हम ये बोल रहे हैं दिस इज, अच्छा ये समझ, आई एम गोइंग टू द जिम दीज डेज, लेट्स से आई डोंट गो टू द जिम, आई एम अ वेरी फैट पर्सन, आई डोंट डू एनी एक्सरसाइज इन लाइफ। लेकिन मान लो अगर अभी हम जिम जाना चालू करेंगे और एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम बोलेंगे कि भाई जिम जाते ना तो एकदम ही बॉडी टूट जाती है, कुछ काम ही नहीं हो पाता, हाथ पैर हिलना विलना बंद हो जाता है, व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू मी? एक मतलब थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं मगर कंटिन्यू करते हैं जिम जाना। फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं? Like if you're going 6 day in a gym, go for 5 days a week, 5 day अच्छा, a week, 5 days बट जाना चाहिए week में। कंटिन्यू गोइंग विथ पैसेज Yeah, ऑफ but टाइम, continue going. हाँ। with passage of time it will become easier and it would become an part of who and what you are, and you would not Yes. feel as much strain. That is the Yes. advice that I'm giving you. There is nothing inherently wrong apart from not sitting down for long stretches, but then when you sit down for long stretches it is a problem that will resolve of its own. तो मैं अपनी तरफ से एक्टिव स्टेप्स लेने के नाम पे बस लंबा ड्यूरेशन के लिए बैठ रहा हूँ और कुछ नहीं कर Okay, sir. रहा। Thank ओके, you, sir. ठीक। यस प्रियांश, अरे एक मिनट, I should enable the ability for you to unmute yourself. Yes, Priyansh. Priyansh, you can unmute yourself and ask. हेलो। Yes. हाँ नमस्ते सर। Hmm. सर मेरा क्या है ना कि अ, मतलब किसी अच्छे दिन में हद से ज्यादा मतलब अगर हो तो एलआरडीआई के ना 2 सेट निकलते हैं एट पार, मतलब मैं छू पाता हूँ 2 सेट। तो Hmm. ठीक है, मतलब उससे मेरा मतलब स्कोर 80-85 के आसपास बनता है। मैंने 2 बार ऑलरेडी कैट दे चुका हूँ, बट इस साल आई एम एमिंग एटलीस्ट मतलब 130 प्लस के आसपास। तो मेरा क्वांट बहुत मुश्किल है, तो मुझे उसके लिए कवर करना पड़ता है कि अगर मेरा वहां से सेक्शन निकल जाए तो वीआरसी मेरा ठीक है, वहां से मैं स्कोर मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो अगर मैं 3 सेट एलआरडीआई के कर पाऊँ तो मैं अपना स्कोर ना वहां से थोड़ा सा और अच्छा ले जा सकता हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग क्वांट, वो तो है ही है, बट Hmm. मतलब 2 सेट के ऊपर सर कैसे जाऊं? मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव प्रैक्टिस अराउंड अबाउट 900 एलआरडीआई सेट्स, और ये सब क्वालिटी सेट्स हैं, मतलब वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि लीनियर ही कर रहा हूँ मैं। अब Hmm. समझ नहीं आ रहा सर कैसे करूँ आगे। So, यार अब हम इसके अंदर मस्त एक चीज बोलते हैं, अगर हम कटरीना कैफ से शादी कर लेना तो मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां आ जाएंगी। मैं एट मैक्स अपने मोहल्ले की एक लड़की को डेट पे पूछ आस्क आउट कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को कटरीना कैफ से अगर शादी करनी है तो मेरे को क्या करना चाहिए? व्हाट वुड योर रिस्पॉन्स मतलब टू दिस क्वेश्चन बी? आई एम गेटिंग वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। See, हाँ the मतलब problem is you're starting off by saying let you're not looking to maximize who and what you are. Let's say अगर तेरा नहीं आ रहा है, if 2 sets is हम्म, what you are getting to, वही लिमिट आ रही है हम्म, अपनी, तो 2 sets की लिमिट आ रही है अपनी, इंश्योर करेंगे 2 sets अपने निकल जाए। तुमने चालू ही इससे किया कि भाई हम अपना वीएआरसी मैक्सिमाइज कर लेते हैं, डीआईएलआर में मेरे को 3 sets अगर हो गए तो बहुत अच्छा है। यू आर टॉकिंग ऑफ रिजल्ट्स, नॉट नेसेसरली हम्म, टॉकिंग ऑफ अभी जो हमारा प्रोसेस है। तुमने 900 सेट्स कर लिए हम्म, डीआईएलआर में, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब उस 900 हम्म, सेट्स के प्रोसेस में हम बताना, व्हेन यू आर हम्म, सेइंग दीस 900 सेट्स यू हैव डन, यस, यस सर। वी हैव डन देम और वी हैव व्यूड सोल्यूशन ऑफ देम, मतलब एक एक सेट के साथ नहीं स्ट्रगल नहीं, मारा हमने 900 सेट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो सॉल्यूशन देख के तो कोई फायदा, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ मैंने प्रैक्टिस भी आईएमएस और सीएल के पास ईयर मॉक्स में से कर रहा है, उसमें होता हम्म, भी टेक्स्ट सॉल्यूशन ही है। तो हम्म, जब तक दिमाग नहीं मारोगे तो अगर आएगा नहीं तो टेक्स्ट सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है। ठीक वीडियो है। सॉल्यूशन तो ज्यादा से ज्यादा कैड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही मिल जाएगा सर। तो हम्म, वो तो मतलब बेकार की पढ़ाई होती है कि हम वीडियो सॉल्यूशन में से देख लिया और उसको काउंट कर लिया, एक सेट करा है। ठीक वैसा है। नहीं सर, मतलब तो प्रॉपर चलो तरीके चलो, से तैयारी कर लिया। यू गेट क्रेडिट फॉर दिस कि हम वीडियो सोल्यूशन देख नहीं रहे हैं, हम वो सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर एक चीज बता, अगर अपना डीएलआर नहीं बढ़ रहा, क्वांट में क्या अवस्था है कि क्वांट में मेरा नंबर नहीं आता वाला स्टेटमेंट था?
क्वांट में हाँ हाँ जी सर, वही मतलब क्वांट में मेरे को समझ में आता है, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, और मतलब मैं बैठता हूँ पढ़ने के लिए क्वांट्स में, बट अगेन मतलब वही अच्छा लगता एक है फन कि चीज यार बता, सी एक वाला। फन चीज बता। हाँ जी हाँ जी ये हाँ जी हाँ अगर जी। वुड यू लिसन टू माय एडवाइस इफ आई टेल यू कि लास्ट कैट में हमसे 2 ही DILR सेट हुए थे? मेरे से हाँ सर, मतलब अबे विद हम बोल रहे 100%। मेरे से अरविंद शंकर से। आप मेरे से 2 ही DILR सेट हुए थे कैट के एग्जाम में। अच्छा। तो अब हम तेरे को 30 सेट का एडवाइस तो दे नहीं पाएंगे। उससे पिछले वाले कैट में मेरे से 3 सेट हुए थे। उससे पिछले वाले कैट में मेरे से 4 सेट हुए थे। लेकिन पिछले कैट के एग्जाम में जी मेरे से जी। 2 ही DILR सेट हुए थे। तो फिर हम क्या हम्म। तेरे को 3 सेट गारंटी करने का एडवाइस दे पाएंगे? नहीं नहीं सर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, बट द थिंग इज कैट हम्म 2023 स्लॉट 3 में ना हम्म जो LRDI सेट्स आए थे, अगर हम्म। मतलब अगर करने के पोटेंशियल हो ना तो 2.5 सेट तो निकल सकते थे उसमें से। बट मेरा वही है कि आसान आया था तो मैं 2 निकाल पाया, वरना मैं 1.5 निकाल पाता। तो मेरा वो है कि मतलब जब आसान आए तब तो कम से कम 2.5 निकाले, जब मुश्किल आ रहा है तब तो 1.5 से 2 निकाल लिया, समझ में आता अच्छा है, एक बट बात जब बता, नहीं आसान। नहीं भाई तू पता है क्या बातें कर रहा है? तू बात कर रहा है, पेपर हो गया, इन दी एग्जाम हॉल तुमने अपने आप को मैक्सिमाइज किया कि नहीं, उसकी लड़ाई की जगह तुम अब ये चल रहा है वो वाले में मेरे को 2.5 लाना था। अभी ये बता, वहां पे क्वांट के सेक्शन में अगर कोई ढंग से पढ़ के आया होता तो वो कितना कर लेता? क्वांट के सेक्शन में कितना ला सकता था आदमी स्लॉट 3 के अंदर? हाँ मतलब सर हो जाते 8 7, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा तो 8 9 क्वेश्चन हो जाते, और मतलब 8 9 हाँ ये क्वेश्चन आज बहुत अच्छा। थर्ड स्लॉट में आई थिंक मारुति कौंडूरी सर थे जिन्होंने 66 में 66 मारा है। मतलब ऑन दी एस्पिरेंट साइड कह रहा हूँ, मतलब हाँ मारुति भाई सर भाई और भाई भाई मतलब भाई जो भाई, ये बहानेबाजी नहीं। जब तुम ये एस्पिरेंट साइड तुम लगा रहा है 2.5 सेट मार के आए लोग स्लॉट 3 के अंदर। 2.5 सेट का मतलब समझ रहे कितने नंबर हो गए? 36 मार्क्स। 36 मार्क्स में 99.7 पार हो जाएगी दुनिया। एस्पिरेंट साइड में 2.5 सेट हो रहे थे। तुम वही तो बोल रहे। जब हम फ्रेमवर्क बनाते ना, डिबेटिंग का एक बहुत प्यारा फीचर है, वी डेलिबरेटली मिस इंटरप्रेट द टॉपिक टू सूट आवर पर्पस। अब तुम्हें ये प्रूव बिल्कुल करना है कि एस्पिरेंट 2.5 सेट मार सकता है तो हम 2.5 सेट के लिए कहानी बना देंगे। लेकिन जब हमें बिल्कुल क्वांट के बिल्कुल। अंदर मेहनत नहीं करने का आर्ग्यूमेंट देना है तो 8 9 सवाल कर सकता था एस्पिरेंट। बिल्कुल नहीं भाई। देख, हम ये नहीं बोल रहे कि अगर तेरे से 2 सेट निकल रहे, अगर तेरे से 2 सेट निकल रहे, मे बी द वे यू आर पिकिंग अप योर DILR सेट, दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज नॉट इन प्लेस। हम अभी familiarity एंड लेंथ, दीज वुड बी दी ओनली 2 फैक्टर। मतलब एक DILR सेट को अबाउट जजिंग अ DILR सेट, व्हाट इज योर प्रोसेस फॉर जजिंग कि ये सेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ जी हाँ जी। तो सर क्या है कि फर्स्ट 4 मिनट्स ना मैं एक सेट पढ़ता हूँ, देन आई हम्म गो थ्रू द क्वेश्चन स्टेम्स। कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ही एक अलग सेट होता है, हर एक क्वेश्चन में एक अलग सेट निकल के आता है, तो आई हम्म कीप इट यूजुअली फॉर द लास्ट। और मेरा ना एक फेमिलियरिटी भी रहता है, लाइक मेरे से अगर वेन डायग्राम इतने अच्छे से नहीं होता तो मैं देखता हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल वेन डायग्राम है, ठीक है तो उसको, और फिर जब मैं चारों सेट से एक बार देख लेता हूँ ना कि ये ऐसे ऐसे है, तो मैं उसको पैराजम्बल्स की फॉर्म में अरेंज करता हूँ कि ये पहले करना है, ये दूसरा करना है। अगर पहला सेट पे मैं गया, अगर मेरे को 6 या 7 मिनट में लग रहा है कि मतलब ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, तो मैं उसको छोड़ के अगले सेट पे बढ़ जाता हूँ। बट अगर मुझे लगता है कि मैं अगर उसको 3 4 मिनट और दूंगा तो चीजें निकलने लगेंगी, फिर मैं उसके साथ रहता हूँ। अगर मेरे को लगता है 10 मिनट और दूंगा और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे से निकल जाएगा, बिकॉज एट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस ना एक गट फीलिंग डेवलप हो जाती है, स्पेशली इन DLR। व्हाट आई हैव थॉट, मतलब मेरे को, मैंने जो एक्सपीरियंस करा है कि एक मेंटल मसल हो तुम्हें बताती है कि ये मतलब हो जाएगा या नहीं होगा, और वो यूजुअली मतलब मोर ऑफ्टन देन नॉट वो करेक्ट होती है। ठीक है, तो 2 मुद्दे इस पे। एक सेट पे हम 6 से 7 मिनट डेडिकेट करते हैं बिफोर डिसाइडिंग टू मूव ऑन और कंटिन्यू विद दिस सेट। नहीं मतलब ऐसा नहीं कि अभी पढ़ा बोला है और तुमने भाई, बिल्कुल ही डेटा भी तुमने ये हाँ बोला है, नहीं अभी नहीं तुमने नहीं डेटा ये भी है। बिल्कुल। हम्म हाँ हाँ मतलब मतलब जो मैंने पहले 4 मिनट की एक्सरसाइज करी होती है ना सर, हम्म। उससे जो मेरा यूजुअली जो पहला और दूसरा सेट में सेलेक्ट करता हूँ वो डुएबल होता है मेरे हिसाब से। तो मान लिया यूजुअली मान वो लिया 6 से 7 मान लिया मिनट में। हाँ जी मान हाँ लिया जी हाँ मान जी लिया, हाँ जी अभी हम बिल्कुल। ये बोल रहे हैं, जो पहले 4 मिनट की रीडिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम एक स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ टेबल भी बना लेते हैं कि बस हम रीडिंग ही कर रहे होते हैं? नहीं नहीं सर, सेट पढ़ा, क्वेश्चन स्टेम्स पढ़े, फेमिलियरिटी मतलब समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसे, ये अप्रोच लग के शायद हो जाएगा, ऐसे होगा वैसा होगा, तो उसको भाई जो पैराजम्बल्स सवाल फॉर्म हमने में पूछा अरेंज कर। यस नो था, जो सवाल हमने पूछा वो यस नो था। जब हम एक बार पढ़ते हैं तो साथ में हम टेबल वेबल बना लेते हैं कि इस टाइप का टेबल बनेगा, इस टाइप की रिकॉर्डिंग होगी, कि हम सिर्फ रीडिंग कर नहीं रहे नहीं होते हैं? नहीं, सिर्फ दिमाग में। अच्छा, तो हाँ जी। परहैप्स दैट इज एन एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ओके। माई प्रोसेस इज, हम 3 से 4 मिनट, जो तुम बोल रहे हो शुरुआत का, हम भी 3 से 4 मिनट एक सेट पढ़ते हैं। Some sets would take perhaps 2 minutes only. Some sets would take perhaps 5 minutes. Not a problem. But I try to identify the best style of recording information for every set. अगर मेरे को इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग का स्टाइल या टेबल दिख जा रहा है कि भाई ऐसा ऐसा होगा,
देन दिस सेट इज विद इन रेंज, बिल्कुल करना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट मी नॉट वेस्ट टाइम। वंस आई हैव क्रिएटेड दैट टेबल, इन दैट मोमेंट इटसेल्फ आई आल्सो मेक अ जजमेंट। अगर ये अगले 6 से 8 मिनट में मेरे से हो जाएगा तो अभी कभी सेट उठाएंगे। अगर ये मेरे से 8+ मिनट, 8 से 12 मिनट में होगा तो इसको हम बाद में उठाएंगे। अगर मेरे से 12 मिनट प्लस रहेगा, देयर आर सर्टेन सेट्स दैट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और देयर आर सम सेट्स दैट आर एब्सोल्युटली लैटिन, समझ में ही नहीं आता बोल क्या रहा है सवाल के अंदर, क्योंकि अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन 1 एंड इंस्ट्रक्शन 5 आर कॉन्ट्रडिक्टिंग। इसने बोल दिया राइट। था कि इसके साथ कुछ नहीं आएगा और इसने बोल दिया इसके साथ ये आ रहा है, तो डेटा ही नहीं पकड़ा रहा है। Those sets we leave for later and we move on. Our target is within that 40 minutes, whatever maximum I can do. Now here, the final analysis post-test work, you also need to be very, very certain. It doesn't matter दुनिया क्या कर रही है. After the test, if I could do 2 sets is great for me. If I could do 3 sets, then perhaps there is a reason why I left out this set, या मेरे को इस set को solve करने में ज्यादा टाइम लगा. The primary point of difference that I can see is हम उस 4 मिनट, इनिशियल 4 मिनट्स में हम एक रिकॉर्डिंग स्टाइल डेवलप करने की कोशिश करते, टेबल के अंदर क्या डेटा कैप्चर करना है, क्या कैप्चर नहीं करना है, एंड विद इन दोस 4 मिनट्स। अब यहाँ पे हम विद इन दोस 4 मिनट्स हम एकदम डीप में नहीं पढ़ रहे, ऊपर ऊपर से ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन स्टेम्स जो उसके साथ 5 सब पार्ट्स है वो भी पढ़ रहा है, उससे हिंट इफ है कि नहीं, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है कि नहीं, प्रिसाइज ऑप्शंस है कि नहीं, ये सब बातें भी हम उस 4 मिनट के अंदर ही कर रहे हैं। और इस 4 मिनट के बाद मेरा डिसीजन आ जा रहा है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। नाउ इफ द सेट इज इजियर, रफली अराउंड 10 to 11 मिनट्स ये मेरा सेट निकल गया। इफ द सेट इज मॉडरेट, रफली अराउंड 15 to 16 मिनट्स में निकल गया। और उसके बाद अगर मेरे पास और समय बचा है, उसके बाद मेरे पास और समय बचा है, केसेस कम बन रहे हैं, तो फिर हम ये कर लेंगे। देयर हैव आल्सो बीन इंस्टेंसेस जब हम पहला सेट पढ़ते मेरे को लगता नहीं भाई बहुत समय लगेगा, दूसरा सेट पढ़ते मेरे को लगता नहीं बहुत समय लगेगा, तीसरा सेट पढ़ते मेरे को लगता है बहुत समय लगेगा, चौथा सेट पढ़ते इसमें लगता है बहुत समय लगेगा। फिर अब आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा वाला कम टाइम लगेगा। सो रफली अराउंड दी 14-15 मिनट मार्क मेरा एक भी सेट हुआ नहीं है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा, जैसे अभी आई थिंक सिमकैट दिया था क्या अभी लेटेस्ट वाला? नहीं सर, आईएमएस के नहीं लिया अभी, सीएल के लिए आईएमएस का डिस्काउंट का देख रहा था मैं, थोड़ा सा लेने अच्छा हैं। ठीक है ठीक है। अभी आईएमएस का सिमकैट 5 हमने टेस्ट दिया था, आईएमएस का अच्छा। सिमकैट 5 दिया था, मेरे से 2 सेट हुए थे और उसके बाद मेरे पास रफली 7-8 मिनट बचे थे। अब 7-8 मिनट बचे थे तो बाकी दोनों सेट के अंदर जाके हमने देखा कौन से लो हैंगिंग फ्रूट्स वाले सवाल हैं, वो निपटा दिए हमने, जिसके चक्कर में कुछ 13 सही हो गए, काफी है, बढ़िया हो गया, उससे ज्यादा अपने को चाहिए हाँ नहीं। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल। 2 सेट, ये टारगेट जो तुमने शुरू किया ना कि नहीं हम 3 सेट सॉल्व करेंगे तो बहुत फन हो जाएगा, बिल्कुल फन हो जाएगा, बट यू कैनॉट गारंटी 3 सेट्स। Additionally, you are intentionally ignoring areas that you can definitely get more returns out of. QA and Venn diagram दोनों के प्रति एटीट्यूड ये है कि भाई ये मेरे को दिक्कत देता है तो चलो हम इसको छोड़ ही देते हैं। छोड़ो मत, कवर करो। अगर 130 का टारगेट कर रहे हैं, 130 मतलब 100 परसेंटाइल का टारगेट कर रहे हैं, अगर 130 100 परसेंटाइल रेंज का टारगेट कर रहे हैं, देन यू कैनॉट अफोर्ड टू हैव एनी वीक टॉपिक्स। राइट। हर चीज के ऊपर स्ट्रेंथ होना चाहिए, किसी भी चीज के ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि हम स्टंप हो गए, भाई ये क्या बोल दिया इसने, ऐसी क्या बात कर दी। फिर 8-9 क्वेश्चन इन क्वांट गुड स्टूडेंट का एस्टिमेशन नहीं रहेगा, एस्टिमेशन सीधा रहेगा कम से कम 18 से 20 सवाल मेरे को क्वांट के अंदर निकालने ही निकालने, तब 130 की दुनिया आएगी। हाँ, वरना ज्यादा लोड पड़ जाएगा वीआर से एलआरडीए के ऊपर और वो पॉसिबल है नहीं। रदर, हाँ, आई एम गेटिंग, हाँ मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है चलो अगले से बात करते हैं। यस निशांत। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है हेलो सर। हम्म, सर मेरा क्यूए में है, जैसे कि आप बोलोगे तो मैं अपने लास्ट 4 सिमकेट्स के परफॉर्मेंस भेज देता हूँ स्नैपचैट मत में, दैट भेजो विल बी मत मोर भेजो रेलेवेंट। मत भेजो, सवाल ठीक है। पूछो, सीधा सीधा सवाल पूछो। सवाल यही है कि मतलब मुझे हमेशा लगता है कि क्यूए में 2-3 सवाल एक्स्ट्रा कर सकते हो, जैसे आपने बताया कि 2 घंटे हम्म, से ज्यादा एट ए स्ट्रेच पढ़ो, तो हम हम्म, मतलब मुझे वो गलती दिखी कि हाँ हम्म, मैं तो मतलब 1.5-2 घंटे ही सुबह में उठ के एट ए स्ट्रेच कर रहा है। जैसे कि सबसे हम्म, पहले बुक पढ़ लेता हूँ ठीक है। 10 to 15 पेजेस, अरे फिर ठीक है आपका भाई, जो मुद्दे पे आ, जल्दी सवाल मुद्दे पे आ। हाँ मतलब कि वही बोल रहा हूँ कि जैसे सीएल के पास मॉक्स बना रहा है मैं क्यूए के लिए, तो उसका मतलब नंबर ऑफ आवर्स क्यूए में और अधिक कर दूं, मतलब फॉर हाँ फॉर दैट पर्पस। नहीं, हम बोल रहे नंबर ऑफ आवर्स क्यूए में ही अधिक मत कर, पढ़ाई के नंबर ऑफ आवर्स अधिक कर। क्यूए में अगर 4 लगा रहा है तो डीआईएलआई में भी 3 लगा, वीआरसी में भी 3 लगा, एज इन स्टडी फॉर लॉन्गर स्ट्रेचेस एट अ टाइम सो दैट आवर ब्रेन गेट्स अकस्टम्ड टू फोकसिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस ऑफ टाइम।
ओके। बस यही है एडवाइस। क्योंकि क्यूए और मतलब वीआरसी और डीआईएलआर में फोकस का इशू तो नहीं आता है, मतलब मोस्टली नोटिस किया है। जो मतलब डीआईएलआर में मोस्टली जो में से 2 सेट्स करने लगे, सिमकैट 5 ने अपने बोला कि 2 सेट्स होने वाले अबे थे। एक मिनट सुन निशांत, हाँ। हाँ। पूरा दिल प्यार और रिस्पेक्ट, मुद्दे का सवाल पूछ, व्हाट इज योर फाइनल क्वेश्चन? भाई क्यूए का ही था सर, मतलब जब आपने बोला ना कि बार बार सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, थोड़े हम्म, से अजीब से गंदे संदे मिस्टेक्स होते हैं, वो क्यूए के साथ होता है मेरा। और ठीक है पिछले 5 सिमकैट्स में हुए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। और मतलब लास्ट के वो भी 30 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स क्यूए में भी फोकस हो जाता है। वही लास्ट के 10-15 मिनट जो होते हैं ना, हम्म। जितने सिली मिस्टेक्स होते हैं, जितने गंदे अबे मिस्टेक्स होते हैं, वही लास्ट के दस तो पंद्रह मिनट देख, होते तेरा हैं। तेरा सवाल है कि अपने मिस्टेक्स हो जाते हैं, और हाँ। पूरा सेशन था वो सिली मिस्टेक ओवरकम करने का, व्हेन यू आइडेंटिफाइड दैट पर्टिकुलर पॉइंट उसको ओवरकम करने का। हम्म। तो सवाल, नया सवाल क्या है जिसका हम जवाब दें? नहीं मतलब वही बोल रहा था कि जैसे कि क्यूए का ही नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दे करने का, या ओवरऑल बस यही था। ओवरऑल सब कुछ का पढ़ाई का नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाओ। और ऐसा मत करना कि दिन भर में सिर्फ क्यूई पढ़ रहे हैं, आरसीबी मतलब बीआरसी भी पढ़ना, डीआईएलआर भी पढ़ना, क्योंकि कैट वाले दिन अपने को सिर्फ क्यूए नहीं सोचना, अपने को तीनों टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस साइमल्टेनियसली करने। तो हर चीज में नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा ही रखना। एक एक स्लॉट में 4 घंटा अगर खींच सको बेस्ट रहेगा। ओके, मैं अभी 2 कर रहा हूँ, 2 से 4 करने का कोशिश करूंगा उसको। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। यस राज। सर यू जस्ट मेंशन दैट आपने अभी बोला था कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्टडी आवर्स बैठ करने हैं, बट जब मैं बैठने जाता हूँ तो माइंड बड़ा ये होता है कि यार इतना टाइम करना है वगैरह वगैरह। तो हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन करूँ कि मैं अपना माइंड रेडी हो जाए कि इतना करना है करेंगे। तो ठीक है। वो इसमें पढ़ रहा है कि होता है कि माइंड को पता है कि इतनी देर अभी 4 घंटा भी पढ़ना है, तो माइंड थोड़ा सा ये वॉबली होना शुरू होता है कि यार 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 इतना ज्यादा टाइम करना है, ये करना है वगैरह वगैरह। तो और फिर वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर दूसरे कामों पे लग जाता है, तो पढ़ाई नहीं हो पाती। तो अभी उसको अपने माइंड को कैसे ट्रेन करूं मैं कि कि करना है, अभी ये करना हम्म, है। थैंक यू। अच्छा चल, एक ऑल्टरनेट सिनारियो देते। लेट्स से हम्म। if I hope it doesn't happen, but some family member of yours gets हम्म। some sort of medical emergency और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, और हम्म। वहां पे तेरे को आईसीयू के बाहर तेरे को वहां पे खड़ा रहना है कि डॉक्टर का सारा कंसर्न्स एड्रेस करना है, उनके लिए खाना वाना ला के देना, सब कुछ करना है। उस टाइम पे क्या तेरा माइंड वॉबल करेगा एंड यू विल शाई अवे फ्रॉम डूइंग दैट वर्क? नहीं, डेफिनेटली नॉट। व्हाई नॉट? क्योंकि मतलब लाइक देयर इज लॉट ऑफ स्टेक इन्वॉल्वड इन दिस। डज कैट हैव दैट डिग्री ऑफ स्टेक? या। Then you'll find the motivation to do it. देख, अगर there aren't things that as in mind wobble करता है, ये करता है, देख माइंड सबका वॉबल करता है, दुख सबको होता है, इरिटेशन सबको होती है। If this is हम्म। important, you will find the time and energy to do it. If this is not important, you'll find other things to do. इससे ये बुरा नहीं है कि you find other things more interesting. ये हम्म। बुरा है कि we end up यहाँ पे वो नहीं बोल रहे थे, we end up believing अदर फैक्टर्स आर ruinous. माइंड वॉबल नहीं करता, हम माइंड वॉबल कराते हैं भाई, हमने पसंद है दूसरी चीजों पे जाना। लेट्स से तुम अपना, डू यू स्टडी ऑन एज इन ऑन अ लैपटॉप और विथ अ फिजिकल बुक? फिजिकल बुक, फिजिकल समटाइम्स बुक, लैपटॉप, बोथ बोथ दोनों। ठीक है। ठीक है, हम बोल रहे जिस जब तुम बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, लैपटॉप तो नहीं खुला रहता ना सामने, नहीं। और फोन भी नहीं रहता ना साथ में? नहीं, फोन तो नहीं रहता है। फोन नहीं रहता, लैपटॉप नहीं रहता, मतलब देर इज नो अदर स्कोप फॉर डिस्ट्रैक्शन। बस अभी मैं अपने 4 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं, बीच में अपने उठ हम्म। के पानी पीने नहीं जा रहे हैं, बीच में अपने उठ के किसी से बात करने नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे बीच में। वैसा सीन तो नहीं होता, बीच में तो जाना ही पड़ता है। अभी नॉर्मल अर्जेंसी को तो कैसे रोक सकते हैं, बट अगर दिस सिचुएशन मोस्टली क्या कि बिकॉज सिंस क्या ऑल द एग्जाम्स आर कंप्यूटर बेस्ड, अभी नाउ आई एम मूविंग फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम आई एम ऑलमोस्ट डिटैच्ड फ्रॉम बुक्स, नाउ आई एम मोस्टली फोकस्ड ऑन लैपटॉप। अच्छा, when you're studying on laptop, there will be some file that you're studying from or some website you're studying from, हम्म। simultaneously YouTube का कोई टैब नहीं खुला रहता ना? रहता है। अच्छा, क्यों? नहीं, पता नहीं, बट पता वो नहीं क्या? इम्पल्स। तुम खोलते ना भाई, पता नहीं क्या? डू यू नॉट हैव कंट्रोल ओवर योर ब्राउजर? एग्जैक्टली, इन सम वेज देयर इज नो कंट्रोल ओवर माय ब्राउजर की अच्छा लग जाता सुन है। सुन राज, if we believe this, you have no control over your browser, then you have हम्म। absolutely no control over yourself, which means you have absolutely no control over your cat performance, which means you have absolutely हम्म। no control over how what the outcome is. फिर तो भगवान के भरोसे, फिर अपने भगवान से प्रार्थना करते, यही बेस्ट रास्ता है। You हाँ। cannot be doing this कि मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन tell me how do I fix it?
ये नहीं हो हाँ सकता ना भाई. You have the हाँ control. First thing is acknowledging you have the control. You have to ठीक है close all your YouTube windows. You have to close all your social media other thing. जब अपने पढ़ाई कर रहे हैं ब्राउजर पे तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं. इसके लिए एक अच्छा ओके चीज ये भी रहता है. One alternate thing that a lot of people do. एक अपना क्रोम है जिसपे अपने हरकतें कर रहे हैं, या फिर एक हम्म ब्रेव ब्राउजर डाल लेते हैं या ओपेरा ब्राउजर डाल लेते हैं. एक स्टडी ब्राउजर है, जब वो चल रहा है हम्म तो फिर कुछ और चीज नहीं चलनी चाहिए लैपटॉप में. ओके वरना मतलब बेसिकली दे फोर्स देमसेल्व्स टू वर्क. यहाँ पे अपना कोई ईमेल आईडी लॉगिन नहीं होके रखा है कि यूट्यूब की रिकमेंडेशन आ जाए, कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ भी नहीं होके रखा है. कीप अ हाँ सेपरेट ब्राउजर, उसपे बस लगे रहो, उससे काम कर लो. ओके बट देन एक्नॉलेज दिस, यू आर ओपनिंग. यू कांट से ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है ब्राउजर के अंदर वीडियो. भाई वो तुम खोल रहे हैं. हम्म ठीक. नहीं डेफिनेटली यस definitely श्रेया, that यस श्रेया. makes a lot. Can I just ask one more question before Shreya goes? It will be a smaller one. भाई So वो now when you're practicing, until till the time you're getting answers right, सब सही है. हम्म, The time you start to make errors and things go wrong, then you हम्म. get demoralized. So then heavily demoralized हो जाता हो. तब क्या करना? ना तो बेस्ट चीज ये करना भाई, 2+2 के लिए 50 बार कॉपी पे 2+2 लिख, 4 4 4 4, हर बार सही आंसर आ जाएगा, बहुत खुशी होगी. हाँ नहीं. यही करना है ना अपने को. whenever हम्म you get something wrong, whenever you face some pain, that is the time you're learning. Let's हम्म say if I come and teach you A to Z, क्या क्या लेटर्स आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, that is something you already know beforehand. बहुत खुशी रहेगी, जिंदगी में सब कुछ मस्त चल रहा है. But then you haven't really learned something. You only learn something when you feel pain. When you go, if somebody goes to the gym and comes back without any body aches, is that person really gymming? वहां पे जाके शेक पी के वापस आ रहा आदमी. लेकिन अगर आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेन तो होगा ही. अंडरस्टैंड, in the हाँ learning process pain is inevitable, and every time you get pain you have to associate, you have to forcibly associate it with a positive emotion. क्योंकि जब अपने को पेन हो रहा है तभी इंप्रूवमेंट हो रहा है. हाँ if you're not trying you will not have any pain at all. तो राइट. अगर सवाल नहीं होते, बहुत बढ़िया, इसके अंदर अभी क्या सीख सकते हैं, दैट शुड बी द ओके रिस्पॉन्स टू इट, रादर देन अरे मेरे से ये सवाल भी नहीं हुआ. डोंट बी सैडेंड, ऑलवेज बी ओके. व्हाट डोंट मतलब नेवर बी व्हाई मी इंस्टेड. वो नहीं लगता कि भाई चलो इसको ट्राई ठीक मी. कैसे कर सकते हैं. ट्राई मी हाँ वाला हम नहीं बोलते. ट्राई मी इज very weird because the origin of that phrase is very circumspect. I But got ठीक, your छोड़ो. point. Okay. Yes, Shreya. All right, thank you so much. Hi, sir. So currently I'm working, and I currently work for like 10 plus hours, including travel, back and forth. Hmm. Plus I recently started my prep. Although I'm doing LIDA sets, I've completed the basics, completed quants basic. VRC section is good for me. Okay. What advice do you give, like, to strengthen my preparation? I haven't started mocks yet. The last mock I gave was Krakows All India test, but that was way before my preparation. Okay. I don't get much time during the day, so अच्छा. any I think advice? two pieces of advice. एक, stop looking for advice elsewhere. I'm guessing you are enrolled somewhere. कहीं पे पढ़ाई कर रहे होंगे. No, sir. Self prep. खुद से ही पढ़ाई कर रहे हैं. Yes, ठीक है. sir. तो पहले कभी कैट की तैयारी करी है हमने. नहीं, sir. तो First फिर हम time. सेल्फ से ही क्यों पढ़ाई कर रहे हैं. हम कहीं और से मतलब कहीं से हमने सपोर्ट क्यों नहीं लिया. So actually मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि lectures and classes attend करने का. तो as in ठीक है. like At the least most. do you have somebody in your network, your friend, your Uh-huh. bhaiya, your didi, who has gone through the rigor themselves. No, sir. तो भाई मतलब बात बता, if you started IAS prep right now, would you not take coaching for that? So, but I've seen people around me crack CAT अरे without any ना ना preparation. ना 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 देख बहन, हम ये नहीं बोल रहे कि कैट विदाउट हेल्प क्रैक नहीं हो सकता. पंगा ये है राइट नाउ, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इज अ वेरी, क्या बताएं, अनइन्फॉर्म्ड क्वेश्चन. अभी अभी हमने रिसेंट में कैट की तैयारी चालू करी है, हमने एक मॉक भी पहले दे दिया है. और व्हाट इज द एडवाइस, आई एज ऑफ नाउ आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट योर लेवल ऑफ सॉल्विंग एबिलिटी इज. अभी आपका थ्योरी कवरेज कितना हुआ है, आपने क्वांट के सारे टॉपिक कर लिए हैं. व्हेन यू से LRDI में बेसिक्स हो गए हैं, उसके बाद हमने So इंडिपेंडेंट. basics as in जैसे arrangement है, तो arrangement में जैसे basic होता है कि arrangement circular अबे देख arrangement देख, पढ़ा सुन सुन है. सुन 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 हम ये बोल रहे हैं
इवन लेट्स से आपने एलआरडीआई के बेसिक कर लिया, उसके बाद हमने 100 मॉक लेवल के सेट्स प्रैक्टिस कर लिए हैं क्या? सो in the absence of all these data points, me giving you advice, because the advice that इसीलिए हम बोल रहे कोचिंग वाले या somebody who knows you well, those people would give you more pointed advice for your improvement. The only advice I can give you right now is, given we started this late, I will call it late now, given we started this late, as in anyone who started after, let's say, May, I think that CAT preparation for that cycle is a very, very ambitious target for them. So given we started this late, give it your best shot, try your best, start, as in after you're done with a significant part of your syllabus, start taking notes, give it your best. Don't have a lot of expectation. मतलब अंधाम खेल के आएंगे, लग गया तो लग गया, कोई बात नहीं लगा तो दुखी नहीं होंगे. बस ये हालत है कि whatever hard work we have to put in, don't operate with this. इस साल का कैट नहीं निकल रहा है तो this hard work is useless, या इमोशनली ऊपर नीचे जाएंगे नहीं, क्योंकि आपने देरी से जब चालू करा, maybe it works out well for you this year and you do excellently well and you prove me wrong and I have mud on my face, सब कुछ बेकार कर दिया हमारे लिए, और you have laid down a very good foundation for the next cycle. Let not your efforts be, साथ के साथ do not look at a lot of other comparative forces, क्योंकि there are people who are taking CAT for the second time, there are people who are taking CAT for the third time. So for you, when exactly did you start your CAT prep? So I started my prep around April mid. Okay. Completed all the basics. So just now Yep. practicing questions. We have completed all the basics in quant from April mid to July beginning. Yes, sir. You are definitely smarter than me. मेरे से इतनी जल्दी में नहीं हो पाता quant का सारा basic. So actually मेरा 12th में भी मैथ्स था, तो तो it भाई was मेरा not भी 12th में मैथ्स very था, ऐसी tough. बेइज्जती नहीं करता, मैथ्स में 100 था मेरे 12वीं में, ऐसी सर बेइज्जती उस नहीं. टाइम कोचिंग ली थी जेई की, तो उस टाइम अच्छा. इतना अच्छा नहीं था. ठीक है, बट अलजेब्रा वगैरह कवर हो गया था, ज्योमेट्री इजीली. अच्छा, लेट मी आस्क नॉन मतलब politically unsafe question. Do you have access to materials of some coaching institute that you're referring to? Do we have access to videos of some institute that we are referring Sir, to? not videos, previous year mocks only, which I'm like using for practice right now. नहीं, तो फिर हम ये पूछ रहे भाई, हम ये पूछ रहे हैं कि नहीं भाई सर, वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं. वीडियोस वगैरह कुछ नहीं, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारा क्वांट का बेसिक्स हो गया, तो हमने कहाँ से कवर किया वो बेसिक्स? सर अरुण शर्मा सर की बुक थी, अच्छा. उसका पीडीएफ था, तो अच्छा, वहीं से सॉल्व किया था. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. आ, तो ठीक है, फिर तो हमारा सब कुछ हो गया. तो मॉक्स हम कब से देने वाले हैं एंड एवरीथिंग? सो एक्चुअली मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है तो लाइक क्यों? आराम से मॉक्स दे के एनालाइज करने का, बिकॉज इवन क्यों? सैटरडेज आर वर्किंग. और संडेज पे संडेज? आई हैव टू ट्रैवल बिकॉज माय जॉब रिक्वायर्स ट्रैवल, तो उसकी संडे वजह को से. डू यू हैव जॉब कमिटमेंट्स? सो बिकॉज आई एम इनटू कंसल्टेंसी, तो उसके लिए फिर ट्रैवल करना पड़ता है. संडे को ट्रैवल करना पड़ता है? सो वापस और क्लाइंट की लोकेशन से ऑफिस एंड फिर वैसा. अच्छा देख, सी श्रेया, ये हालत है. देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन लाइफ वी कैन सॉल्व, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन लाइफ वी कैन नॉट सॉल्व. आइडियली you have to eke out time, you have to eke out time. In the ideal world you would have 2 hours of mock taking followed by 5 hours of analysis, but if that is not possible, तो फिर जितना टाइम भी अवेलेबल है, जितना भी समय अवेलेबल है, we'll maximize that. The problems that we cannot solve, they are called constraints. You have to work around them. In the constraint that you have is you cannot eke out 7 hours in one go for attempting the mock and analyzing it right after. तो ठीक है, we'll do it in 2 hour stretch followed by a 2 hour stretch. Now अगर हम क्लाइंट के लोकेशन पे जा रहे हैं, Yes, sir. और संडे को हम वापस आ रहे हैं, तो फिर मंडे को हम फिर क्लाइंट के लोकेशन पे जा रहे हैं. नहीं सर, एक्चुअली इट्स काफी डिफरेंट मॉडल है वर्किंग. 2 days ऑन साइट, 3-4 days ट्रैवल, क्लाइंट लोकेशन. देख लीजिएगा. आई एम नॉट अवेयर भाई, फिर मेरे को नहीं पता कि आपका प्रिसाइज सिचुएशन क्या है, बट अगर हमारा 10+ आवर्स का वर्किंग है, लेट्स से आपका 11 आवर्स का वर्किंग है एक डे का,
सो यू हैव रिमेनिंग 13 आवर्स, उसमें से 4 घंटा खींच के निकालिए, 4 घंटा 5 घंटा खींच के निकालिए, स्लीपिंग एंड फूड एंड कैचिंग अप विथ पीपल सब कुछ का टाइम मिनिमल कीजिए। और जितने if for however long you can sit down in one stretch, try to maximize the duration. Only then does it take, only then would it, as in that would be the best thing. बाकी तो क्या ही बोले इस पे, there aren't a lot of data points for me to advise on. बाकी अपने इतनी जल्दी अगर आपने क्वांट कर लिया, आई होप इट गोज वेल। यू आर, I'm hoping you are doing very well। इसमें मतलब इतनी जल्दी मेरे से नहीं हो पाता क्वांट, अगर हम पढ़ होते पहली बार तो। ये इतनी जल्दी में क्वांट खत्म कर दिया बहन, बहुत ही इम्प्रेसिव। यस ईशा। Okay, sir. Thank you. Hello, sir. Hmm. Sir, my concern is that my daily routine, I'm not very consistent. Like some days I study very late, some days I study in the morning hours, and I'm doing full-time prep. So I think I should get up early, but that thing is not happening with me. I'm not even studying late, I'm not even studying in the early hours, and managing three subjects is also very hard for me. Matlab, if I go into LRDI, I solve LRDI whole day. If I go into RCs, then I solve RCs only. Read only. If I go into one subject, I over practice it. I don't manage all the threes. ठीक है, तो सवाल क्या है? ये तो हमने दुख बांट How लिया, सवाल क्या है? how to manage all the subjects, and how ठीक how can I improve my daily routine, because it should be disciplined, and I don't, and I'm not ठीक है disciplined. ठीक है ईशा, हम एकदम वही, I think you were the one who had commented, yes we have control, we can control everything, we can't blame anyone for our situation। ये आप ही ने कमेंट भेजा ना चैट में? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो अब इसका हम कहानी खेलते हैं। ये भाई मेरे को ना वेट लॉस करना है, लेकिन हम सुबह उठ के ना जब नाश्ता करना चालू करते हैं आलू के पराठे, तो हम एक बार में 8-8 आलू के पराठे खा लेते हैं। फिर हम एक्सरसाइज करने नहीं जाते, मेरे से हो ही नहीं पाता, फिर हम सोते रहते हैं 10-10 घंटे, और फिर शाम में हम बिरयानी खाना चालू करते हैं। तो भाई साहब पता नहीं कितने मुर्गे कुर्बान हो गए मेरी बिरयानी खाने में, पर मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। हाउ डू आई मेक श्योर दैट आई लूज माई वेट? व्हाट शुड आई डू ईशा? सी द थिंग्स दैट यू आर टेलिंग मी, you have full Less time, portion. अबे you're doing full time cat prep, we have irregular sleep cycle without any constraints on our time, we are over practicing a topic, that is a decision that you are taking। the fixing of this is very very clear ना, दिन भर में slots बना लीजिए। सुबह उठना है तो उठना है। अभी आप घर पे रह रहे होंगे होपफुली। Yes, sir. Yes, sir. the best thing that मम्मी पापा love to do is बच्चों को सुबह सुबह जल्दी उठाना। एंड Yes, इफ sir. यू टेल देम कि मम्मी मेरे को सुबह उठना है, धक्के मार के मेरे को 6:30 बजे उठा देना, तो मम्मी Hmm. धक्के मार के 6:30 बजे उठा देगी। मम्मी को बड़ी खुशी होगी ये बात सुन के। और हाँ यू वुड हैव टू, 2 दिन 3 दिन 4 दिन करोगे ना, स्लीप साइकिल अपने आप एडजस्ट होगा, आराम से 7:30 बजे उठेंगे ही उठेंगे। इट्स नॉट लाइक द प्रॉब्लम दैट यू आर स्टेटिंग इज अ प्रॉब्लम, बट देन द प्रॉब्लम इन इटसेल्फ, दिस इज वेरी मच लाइक अ DILR सेट। इसका सोल्यूशन प्रॉब्लम के अंदर ही है। आपको ही पता है ना कि वी टेंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड हम इधर उधर डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। खुद को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। ब्रेक इट अप इनटू स्लॉट्स। सुबह में 3 घंटे हम VRC का करेंगे ही करेंगे, फिर दिन में 3 घंटे हम क्वांट करेंगे ही करेंगे, फिर शाम में 4 घंटे हम DILR करेंगे ही करेंगे। यू कैनॉट डू कि नहीं जब हम DILR करते तो हम DILR ही करते रहते हैं। यू आर चूजिंग टू कंटिन्यू डूइंग DILR। तो Hmm. दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम सो मच एज something that you have to consciously break the habit of। Yes, sir. Sir, I've heard that we should make subjects like if I study 1 hour VARC, then next hour I should switch to DLR, so that the learning becomes very fun process, so that we don't get bored with the one subject. I have never heard of it, I have never seen anyone do it, I did not do it when I was a candidate। मतलब Okay, I वन think it's a आवर bad. वन आवर में टेस्ट दिए जाते हैं, वन आवर में स्टडी नहीं होती। बिकॉज देन व्हाट वुड हैपन इज, हम लेट्स से VARC का प्रैक्टिस कर रहे हैं, द ब्रेक हैपेंस वेरी अननेचुरली। तब 1 घंटे में आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। आई एम नॉट सेइंग इट कैन नॉट पॉसिबली वर्क। एक बार ट्राई करके देखिएगा, इफ इट वर्क्स फॉर यू, इफ दैट एंगेजेस यू मोर, ठीक है कर लीजिएगा। बट आई
I cannot quite imagine it working. Okay, sir. So one more question is that if I do 3 RCs per day, then Hmm. after doing every RC, should I analyze, or at the end of doing 3 At RCs? the end of doing 3 RCs. Okay. So does it hampers productivity if I do analysis after 1 RC? Yes. So The I mindset that you have at the time of solving something and the mindset that you have at the time of analyzing something are very distinctly different. और वो ऊपर नीचे का shift is very very bad. Okay. And sir, one more thing is that in VARC, we have multiple dimensions to cover in a day, like vocabulary, article, RC practice. Hmm. Then, sir, how should I give time to all those three? RCs also हम takes, कहीं से कोचिंग ले रहे हैं क्या ईशा? yes, sir. तो आई थिंक दोज पीपल वुड बी बेस्ट, क्योंकि आपने जो पहला टॉपिक बोला ना वोकैबुलरी बिल्डिंग तो भाई साहब is not an activity you should be wasting time on. Vocabulary building happens simultaneously along with reading and along with RC solving. Yeah, yes, Vocabulary yes, building का अलग से activity होता नहीं है. But then yes, yes, that is sir. the framework I follow. Maybe Yes. where you are studying, they have a different framework. So I think they would be better suited to tell you कि किस type का framework would work for you. Okay, okay. Thank you, sir. Yes, Akshu. सर LRDI में दिक्कत आ रही है, मतलब मैं 100 से ऊपर तो सेट कर चुका हूँ। मैंने मार्च में ज्वाइन हम्म। की थी कोचिंग, उसके बाद से मतलब वो तो क्लास शीट जो देते हैं ऑफलाइन कोचिंग वाले वो इतनी मेरे को लगता है खास नहीं है। तो मैं क्रैक्यू से करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व, तो 100 से ऊपर तो सेट कर चुका हूँ तब भी, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ ये रहा बहुत मेरे बढ़िया को। चीज बोल रहे हैं। 100 इन योर एस्टिमेशन, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं ना 100, आपके हिसाब से 100 बड़ा नंबर है, मेरे हिसाब से 100 बहुत छोटा नंबर है। 100 हाँ ही सर, तो सेट किया भाई। हाँ सर वही कह रहा हूँ कि मतलब कि मैं कंप्लीट करने वाला था कि सर कितने करना चाहिए, अब 3-4 महीने रह गए तो मैं LRDI में कैसे अपने आप को, मतलब मेरे को इतना चाहिए, मेरे को सर 95 से ऊपर चाहिए परसेंटाइल 95 कम से से कम। ऊपर चाहिए, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं ऐसा कर, 1354 सेट्स करने तेरे को, कर लेगा? तुम लोग सवाल देख रहे हैं, जितने सेट्स कर सकते हो रीजनेबली, जितने सेट्स कर सकते हो उतने सेट करो। अगर हम तेरे को टारगेट दे देंगे कोई एक अनरियलिस्टिक नंबर का तो दुख हो जाएगा। अगर हम तेरे को एक बहुत ही इजी टारगेट दे देंगे वो जल्दी से अचीव हो जाएगा, देन somebody can potentially solve only 300 sets by the time cat rolls around, तो 300 सेट तक पहुंचे। बट यू कैनॉट हैव दिस, ये रहता है ना, मैच शुरू होने से पहले लोग टारगेट बना के चलते हैं कि मतलब आज हमारे ग्राउंड में मैच हो रहा था, पहली बॉल की आने से पहले, पिच देखने से पहले, सब कुछ होने से पहले, एक मेरा ओपनिंग बैटर जो साथ में था वो बोल रहा था यार आज 250 बनाएंगे। भाई पहली बॉल जमीन पे एकदम सुरसराती हुई है सर तो भाई तो सर the मतलब question that कितने you're asking, मेरा the मतलब question मेरी that you're asking is रीजनिंग मेरी कितने में बिल्ड हो जाएगी सर, मतलब मैं ये चाह कितने रहा में हूँ बिल्ड हो जाएगी भाई? अच्छा, अगर कि तुम मैं अभी 100 सेट पे हो, अगर तुम अभी 100 सेट पे हो, हमने 2008 में पहला कैट दिया था और अब तब से लेके अब तक, इवन इफ आई वाज बीइंग कंजर्वेटिव, हमने कुछ 4000 प्लस सेट मार दिए होंगे। पिछले कैट में मेरे से 2 सेट हुए थे एज इन्फॉर्म्ड प्रीवियसली। रीजनिंग बिल्ड होने का मतलब क्या है? You can only get to a point जहां पे you will do best in the paper that is in front of you, whatever you can solve, उस पे काम कर सकते हैं। There is reasoning build हो जाना, this is such a vague term। जैसे ये समझ, अक्षु वो अनम्यूट कर। जी सर सुन रहा हूँ। अंग्रेजी आती है हमें? हाँ ठीक ठीक, थोड़ी थोड़ी। तो अभी कोई भी अंग्रेजी का शब्द देंगे आ जाएगी क्या सॉल्व? उसकी मीनिंग आती होगी क्या? नहीं। लेकिन अंग्रेजी तो आती है ना हमें। हाँ सर। सिमिलरली DILR में रीजनिंग बिल्ड हो जाएगी। द वे आई एम गेसिंग यू आर इंटरप्रेटिंग इट इज कि मैथ्स सवाल हम निकाल पाए। हाँ मतलब सर मेरे को मेरा मैं ज्यादा भी नहीं मांगा सर, मेरा 1-1.5 सेट भी निकल जाएगा, मैं उसमें ही खुश हूँ सर। मतलब मैं अबे तो इतना कर नहीं, गया हूँ LRDI से कि मैं चाह रहा हूँ मेरा पेपर में बस कम से कम 1.5 सेट निकल जाए, मैं उससे ज्यादा मांग ही नहीं रहा। मांग ही नहीं रहा तू, मांग मत, खुद को काबिल बना, सेट प्रैक्टिस करता है। यू कैनॉट पॉसिबली गारंटी 1.5 सेट आज, यू कैनॉट पॉसिबली गारंटी 1.5 सेट 1 महीना बाद। यू कैन ओनली गारंटी वर्किंग ऑन योर स्किल्स। नो, अपने स्किल्स पे काम करता रहे, अपना सेट प्रैक्टिस करता रहे। इवेंचुअली कैट डे के दिन अगर मैक्सिमम प्रैक्टिस करके हो, यू गिवन योरसेल्फ द बेस्ट चांस ऑफ गेटिंग 1.5 सेट और 2 सेट और 2.5 सेट और 3 सेट था ना शुरुआत में, जो 3 सेट के टारगेट लेके चल रहा था। यू कैन टारगेट वट एवर नंबर ऑफ सेट्स। मतलब ये समझ, प्रायर टू अ क्रिकेट मैच यू कैनॉट से ना कि आज मेरे को 50 बनानी ही बनानी है।
अपने को हर बॉल की मेरिट के हिसाब से खेलेंगे, अगर 50 बन गई तो बहुत बढ़िया, अगर मेरी टीम को 40 रन की जरूरत है तो 40 रन भी बन गए तो भी बहुत बढ़िया। अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश कर, डोंट चेज आफ्टर 1.5 सेट और 2 सेट और 5 सेट, उससे दैट इज क्या बताए अननेसेसरी प्रेशर, एंड देन द रेस्टलेसनेस दैट कम्स विद अ टारगेट दैट कैन नॉट बी अचीव्ड राइट नाउ, और उसका स्ट्रेस बना रहेगा, क्या फायदा। अपने आप को बेहतर करते रहते, जो होगा देखी जाएगी। सर क्वांट की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता दो। मेरा अरिथमेटिकल अलजेब्रा मैंने थ्योरी भी कंप्लीट कर ली है और मतलब ठीक ठीक क्वेश्चन लगा लिए हैं, पर अभी मतलब वो उस लेवल की कमांड नहीं है। तो अभी मेरे को अब 3-4 महीने में कैसे मैं और बाकी मतलब क्यूए की स्ट्रेटेजी बता दो। क्यूए की स्ट्रेटजी है, पढ़ाई करते हैं और फिर सवाल सॉल्व करते हैं और फिर टेस्ट देते हैं। स्ट्रेटजी तो हर सेक्शन की भाई साहब प्रिसाइसली द सेम है। ठीक। स्ट्रेटजी क्या होती है भाई, मतलब तो मतलब ये कि समझ, कैसे मैं मतलब ये हम्म टाइम जैसे अभी मैं मॉक सेक्शनल वगैरह देना चालू कर दूंगा। हम्म अभी किया नहीं है मैंने, एक ही मॉक दिया अभी तो। हम्म अ, तो मतलब क्या रोज क्यूए के सेक्शन मुझे रोज देने चाहिए या 2 दिन बाद? तो ऐसे मतलब क्या करना चाहिए, वो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, कितने मॉक देने हैं, रोज सेक्शनल दूं या नहीं दूं, ऐसे ये पूछना चाह रहा हूँ। सेक्शनल का पर्पस क्या है? क्यों देते हैं सेक्शनल? मतलब वो कमांड हो जाए उस टॉपिक पे थोड़ी है मतलब। ना, है ना। पढ़ाई क्यों करते हैं फिर? व्हाई डू वी स्टडी थ्योरी, व्हाई डू वी टेक सेक्शंस? बहुत, दोनों का पर्पस एग्जैक्टली सेम है क्या? नहीं, तो फिर सेक्शनल क्यों देते हैं? टेस्टिंग के लिए कि मतलब समझ आया नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे पढ़ के समझना है, यहाँ पे टेस्ट करना ही समझ आया नहीं। टे, टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग स्किल चेक करने के लिए कि भाई हम आसान सवाल पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, उसकी वो ना हाँ मिस हो जाए मेरे से। उसके हाँ अलावा नए नए क्वेश्चन मेरे पास आएंगे जो प्रैक्टिस के दौरान मेरे सामने नहीं आए, यहाँ पे नए फॉर्मेट में देयर विल बी क्वेश्चंस जो व्हेन वी आर सॉल्विंग इट ड्यूरिंग दैट कोर्स हाँ। ऑफ अ टेस्ट और अ मॉक, तो मेरे को नहीं आएगा, लेकिन बाद में देखेंगे एनालिसिस, ओ ये सवाल पूछ रहा था, अच्छा इस फॉर्मेट में भी सामान आ सकता है, या इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए था। देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग टू इट, बट थियोरेटिकल एस्पेक्ट नहीं है, सीधा सीधा मॉक टेस्ट टेकिंग का एस्पेक्ट है। तो और इसके लिए लेट्स से यू टेक अ टेस्ट टुडे, उसके बाद यू वुड आइडेंटिफाई देयर आर सर्टेन एरियाज यू आर नॉट एज स्ट्रांग एज। अभी हमने अलजेब्रा अरिथमेटिक ही किया है, पीएनसी अभी हमने नहीं किया है, नंबर नहीं सिस्टम अभी हमने नहीं किया है, ज्योमेट्री हमने नहीं किया है। वो नहीं कब पढ़ेंगे हम? उसका क्या है हमारा प्लान? हम रोज मॉक अगर दे रहे होंगे तो वो हम बाकी टॉपिक्स कब कवर करेंगे? सर, मैंने प्लान किया है कि मैं इस महीने में ज्योमेट्री खत्म कर लूंगा। तो मेरे 3 तो इस तो फिर मतलब मॉक रोज दे पाएंगे क्या? क्वांट का सेक्शनल रोज दे पाएंगे? सेक्शनल में सोच रहा हूँ हो जाए इतना तो। अरे मतलब हम ये सोच रहे हैं ना कि कल हम चले जाते हैं यूएसए घूमने के लिए, और बीच रास्ते में टर्की में बहुत बढ़िया फलाफल मिलता है, वो भी खाते हुए जाएंगे। क्या मजाक चल रहा है? पहले तेरा थ्योरी, if you're planning to take अभी right now because you have theory consideration happening simultaneously, then taking a mock every day would not be sensible। तब हफ्ते में एक दो या दो दो, that is like the upper limit। लेकिन पहले थ्योरी कवरेज खत्म करो। once the theory coverage is done, then perhaps every alternate day you can take a mock or sectional, however you frame it, और उसके बाद analysis। your test taking portion should scale up once the theory bit is entirely done। अभी हम रोज रोज क्वांट का सेक्शनल खेल लेंगे, जबकि मेरा ज्योमेट्री भी नहीं हो रखा है। अभी तुम अगर क्वांट का कोई सेक्शनल खेलोगे और ज्योमेट्री का सवाल गलत हुआ तो क्या सीखोगे उससे? नहीं हम सर। अपने आप, हम सीधा सीधा अपने आप को माफ, अरे अभी ज्योमेट्री नहीं हुआ है ना मेरा, ये करके आगे बढ़ हाँ जाएंगे। यू entirely wasted a question in the mock or a sectional that you are taking because you chose to attempt it ahead of time। एक दो मॉक, एक दो सेक्शनल तुमने खेल लिए विदाउट कंप्लीटिंग, समझ में आता है, बट देन इट कैनॉट बी कि हम इन द मंथ ऑफ जुलाई हमने 30 सेक्शनल मार दिए हैं और यहाँ पे हमारी हमारा ज्योमेट्री और नंबर्स और पीएनसी और सेट थ्योरी जो भी मॉडर्न मैथ के टॉपिक्स है वो बचे हुए हैं। दिस स्टूपिड पॉपुलर विजडम ऑफ अलजेब्रा अरिथमेटिक खत्म करने के बाद मॉक्स दे सकते हैं, that is very popular on telegram groups, is very weird। समझना, if it is the average intelligence, average recommendation of the groups, then it is a bad recommendation, क्योंकि the average human being, we've lived long enough to realize the average human being is an idiot। The average human सर, being is not smart। कोचिंग वाले ये करा रहे हैं सर, मैं क्या अगर कोचिंग वाले करा रहे तो फिर नो कमेंट्स, बट ठीक है। सर ऑनलाइन भी सर हर बंदा ये कह रहा होता है कि अरिथमेटिक अलजेब्रा कर लो भाई उसके और बाद एक बहुत तो प्यारी चीज, सेक्शनल चालू कर लो। भाई तुम बोल रहे, अगर हर बंदा कह रहा है, डू यू रियली थिंक इट इज द स्मार्ट थिंग?
हर बंदा अगर कह रहा है the average human being is an idiot, more often than not they have, मतलब सर मतलब सर the मतलब average जो human being has no understanding of context. सर मतलब जो YouTube पे 99% टाइलर बैठे हैं जो मतलब, और जैसे ऐसी एक्सपर्ट वगैरह, जैसे सर आपका यही सेशन है, वैसे औरों के भी देख लेता हूँ तो वो यही कह रहे बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल, अबे देखो, अच्छा ये हालत है, हम ये कह रहे हैं, वो दूसरा कह रहे हैं, जो भरोसे लायक लगे वो कर लो भाई, मतलब इफ इट इज बॉइलिंग डाउन टू दैट, समझो। तुम अपने बोर्ड की तैयारी में, तुमने बोर्ड के मॉक पेपर तब देने चालू किए थे ना जब तेरा दो चैप्टर हुआ था। नहीं सर। लेकिन अभी हम कैट का मॉक तब दे देंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि मॉक मत दो, हम ये नहीं बोल रहे सेक्शनल मत दो, बिल्कुल दो, देयर इज अ टेस्ट टेकिंग स्किल इन्वॉल्व, बट देन यू कैन नॉट गो हैम ऑन टेस्ट टेकिंग व्हेन योर थ्योरी कवरेज इज लेफ्ट इन एंटायरिटी। जब मेरा 3 टॉपिक बचा, 60% तो नहीं, बट लेट्स से दिस इज 50% ऑफ योर पेपर, 50% ऑफ द पेपर को अभी हम फॉरगो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरे को टेस्ट देना है, क्योंकि किसी और ने मेरे को बोल दिया। इफ दैट मेक्स सेंस टू यू, गो अहेड, डू दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम नॉट फाइटिंग विथ 99 परसेंटाइलर्स ऑन यूट्यूब। अगर वो रहता तो मेरे चैनल पे भी स्ट्रेटेजी वीडियोस बन जाती ना, वो मेरे को आती नहीं बनानी। आए, ठीक है, अब चल। समझ गया सर। बेचारे शांतनाव को, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, शांतनाव यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। बेचारे ने सेम सवाल 15 बार लिख दिया है। हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू, गो ऑन। सर मेरा वही सवाल है कि सर कैटव्यू पे जो मॉक्स है सर, वो देखे सर लेवल हाई है सर कैट से बहुत, आप इससे सहमत है कि नहीं? और अगर है या नहीं भी है तो क्या वो मॉक्स देनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? या मेरा सेकंड ऑप्शन मैंने आईएमएस रखा है अभी तक से। अच्छा, शांतना, व्हाई आई डिलेड रिस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज, एक, व्हाट इज कैट लेवल आपको पता है? सर मैंने क्वेश्चन पेपर देखे तो कैट का, तो वो मैंने लास्ट टाइम दिए थे, प्रिपरेशन ठीक नहीं था, और फिर इस बार सिर्फ मैंने अच्छा जो कर दिया अच्छा, भाई 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 भाई, हम ये बोल रहे हैं, कैट 2021 में 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बनी थी? सर उतना नहीं जानते सर। अच्छा, कैट 22 में कितने पे बनी थी? सर नहीं जानते सर वो। अच्छा, कैट 23 में कितने पे बनी थी? सर 75 सर। 74-75 पे बनी थी। कैट 22 में 84 पे बनी थी, और कैट 21 में 99 पे बनी थी। तो कैट लेवल क्या है? 75 वाला टेस्ट कैट लेवल है कि 84 वाला टेस्ट कैट लेवल है कि 99 वाला टेस्ट कैट लेवल है? सर सभी कैट लेवल में। सभी कैट लेवल ही है, विच इज टू से कैट लेवल प्री डिटर्मिन्ड नहीं है ना। नहीं सर। There are going to be tests which are comparatively easier. There are going to be tests which are comparatively tougher. We as preparers should not be in a position or should not get into the habit of ये cat level है, ये cat level नहीं है. That is the worst thing you can do with your brain, क्योंकि यहाँ पे instead of working upon me to become better, we are, ये मटेरियल अच्छा है कि नहीं, ये मेरे को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्रैक्यू के टेस्ट खरीदे आपने, क्रैक्यू के टेस्ट हमने देखे, और क्रैक्यू historically has always had slightly more elaborate longer sets. हाँ सर वही तो सर। अरे रुक जाना भाई, क्रैक्यू की बुराई नहीं कर रहा, हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। सुन, मेरे को पूरा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दे इसका। क्रैक्यू has more elaborate sets, has more as in there are sets in क्रैक्यू in which in tests of क्रैक्यू के मॉक में अगर किसी ने 2 सेट निकाल दिए तो भाई बहुत अच्छा कर रहा है, या क्वांट के अंदर किसी ने 15-16 सवाल निकाल दिए तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, बिकॉज देयर क्वेश्चंस आर नाइस। नाउ इन दैट, इज दिस एन एग्जैक्ट replica of what comes in CAT? No mock ever is an exact replica of what comes in CAT, but my focus should not be क्रैक्यू अच्छा है कि नहीं, my focus should be after the test is over, did I make any silly errors? Were there any questions in the test that I could have solved but during the course of the test I missed out on? Were there any क्या बताएं, judgment errors or calculation errors or representation errors that I engaged in? The focus is not क्रैक्यू अच्छा है कि नहीं, the focus is do I improve out of it? Whether it is a क्रैक्यू test, whether it is an IMS test, whether it is a time test or a CL test, the focus is you, not the quality of the test. टेस्ट जैसा भी है, even if it is an extremely difficult test, टॉपर के 50 नंबर आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। Did you miss out on any easy question that you could have solved? If yes, there is scope for you to improve. टॉपर के 50 आ रहे हो, टॉपर के 150 आ रहे हो, तेरे को बस अपने पे ध्यान देना है। हैव आई मैक्सिमाइज्ड माय स्कोर दैट आई कुड हैव गॉटन इन दिस टेस्ट? देन ग्रेट, इफ नॉट, दीज आर द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर मी। अब वो पेपर डिफिकल्ट है, इजी है, अपने को पता नहीं चले।
कुछ भी हो, योर फोकस शुड नॉट बी कि ये टेस्ट वर्दी है कि नहीं, ये टेस्ट लायक है कि नहीं, इस टेस्ट में ज्यादा मेहनत पड़ी, इस टेस्ट में ज्यादा सॉल्विंग करनी पड़ी है. अंडरस्टैंड our industry, I think those of us who were there for the last class, our industry has this beautiful habit, beautiful drawback of we are always chasing after the CAT exam. पिछले साल कैट का क्वांट बहुत टफ आया, कंपेयर एज इन नंबर देके पता चल रहा पिछले साल. तो इस साल सारे मॉक्स में यू विल सी कैट का क्वांट का डिफिकल्टी लेवल बहुत इंक्रीज होके आएगा. लेकिन यही हुआ था समटाइम अराउंड कैट 2018 में. उस साल में कैट का क्वांट टफ आया था. अगले साल सारे मॉक टेस्ट सीरीज ने कैट का क्वांट बहुत टफ दिया. 2019 के कैट में क्वांट बहुत सिंपल आया था. एज इन देयर वर उस टाइम पे तो 102 मार्क्स का सेक्शन रहता था क्वांट का. 102 मार्क्स वाले आई नो 4 लोग जिनके 102 मार्क्स आए हुए थे, एंड गेटिंग 80+ वाज वेरी इजी. बहुत लोग है, मतलब 99 परसेंटाइल वाज एट 73 मार्क्स आउट ऑफ 102. 73 मार्क्स आउट ऑफ 102 का मतलब समझिए 2/3 से ज्यादा पेपर आपको सॉल्व करना था, तब जाके आपके 99 परसेंटाइल बन रही थी क्वांट के सेक्शन में. ऐसा कुछ था. नहीं 73 पे 99.5 था, शायद 60 समथिंग पे था. जो भी था, पेपर वाज सिग्निफिकेंटली इजियर देन 2018. अब उसके अगले साल 2020 के अंदर उन्होंने आसान आसान पेपर बनाने चालू कर दिए. सो these mock test papers that you come across, they are chasing after the CAT exam. They are always chasing after the CAT exam. पिछले साल कैसा हुआ उसके हिसाब से इस साल एडजस्ट कर देंगे. तो you cannot really expect कि मॉक के अंदर जो आ रहा है वो मेरा कैट में एक्चुअली रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा. That is an insanely bad expectation to have. सर In मेरा fact, it is such a bad expectation to have. It should not even be an expectation. The only expectation that you should have after taking a mock test is identifying what works for you, what doesn't work for you, and were there any things that you can do to improve your test taking. टेस्ट के बारे में और कुछ नहीं जानना है. अब बोले. सर मेरा कुछ डिफिकल्टीज है जिसमें जो कि मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर अगर मैं क्रैक्यू का मॉक टेस्ट सीरीज ना लिखूं और IMS और टाइम का लिखूं तो उसमें मेरा प्रिपरेशन में कोई डेफिशिएंसी रह जाएगा कि मैं उतना ही कर पाऊंगा जितना मैं कर सकता हूँ, जो भी है वो, मतलब कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगा. बट इफ योर रीजन ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम क्रैक्यू इज द फैक्ट कि उनका टेस्ट डिफिकल्ट आता है, दैट इज अ बैड रीजन टू मूव अवे. पैसे तो दे रखे ना क्रैक्यू को, व्हाई वुड यू नॉट टेक दोस मॉक्स. मतलब अगर इतना फालतू पैसा हो रहा है तो भाई मेरे को ये क्रैक्यू का अकाउंट दे दीजिए, हम ही प्रैक्टिस कर लेंगे. मेरे पास क्रैक्यू का अकाउंट नहीं. दे दियो टेस्ट, दे दियो. अभी नहीं देना चाह रहा, लेट्स से राइट नाउ इफ इट इज अ लिटिल इमोशनली जारिंग, मेरे नंबर खराब आता है तो दुख हो जाता है, तो व्हाटएवर अदर टेस्ट यू आर टेकिंग वो सब देने के बाद देन कम डाउन टू अटेम्प्टिंग क्रैक्यू. लेकिन टेस्ट छोड़ना मत. नहीं सर, आप भी सर बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत स्टूडेंट्स या ये बोलते हैं कि जो टेस्ट आपका कैट लेवल नहीं है वो नहीं देना चाहिए, तो इसीलिए हम ये सवाल आपसे अबे पूछ अबे वो ही समझ, इसीलिए हमने सबसे पहला चीज अटैक क्या किया था, व्हाट इज कैट लेवल. बहुत लोग जो बोलते हैं ना कैट लेवल, दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट कैट लेवल इज. क्योंकि कैट लेवल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती. यू आर गोइंग टू गेट इंसेनली इजी क्वेश्चंस इन कैट, यू आर गोइंग टू गेट इंसेनली टफ क्वेश्चंस इन कैट. अब मेरे पीपल ये समझो, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ नॉन इन्फॉर्म्ड एक्सपर्ट्स. किसी ने 2 बारी कैट क्या दे दिया है, वो कैट के बारे में ऐसी ज्ञान भरी बातें करने लग जाते हैं लोग, ऐसा होता है वैसा होता है, जबकि धेले भर का तेरा नंबर नहीं है लेकिन कैट लेवल ऐसा होना चाहिए, इस टाइप का सब कुछ होना चाहिए. हम इतने सालों से खेलने के बाद अभी तक आई हैव देयर आर थिंग्स दैट आई एम अनश्योर ऑफ, देयर आर थिंग्स दैट आई एम डाइसी ऑन कि ऐसा होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए. बट देन देयर आर पीपल जिनने एक बार कैट लिख दिया है, वो लोग एकदम ही एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ जब कमेंट करने लग जाते हैं ना, देन यू रियलाइज दी ड्रॉबैक ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस. कुछ भी रैंडम ज्ञान दिए हुए. यू टॉक टू पीपल, लास्ट ईयर मेरा क्वांट में 99.33 परसेंटाइल आया था, दिस इज हाउ यू शुड बी स्टडिंग एंड दिस इज हाउ यू शुड बी रिवाइजिंग. ऐसे कर करके लोग पोस्ट, मतलब रेडिट पे AMA, लिंक्डइन पे ज्ञान, ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें चल रही है. इफ आई एम नॉट सेइंग all of that is nonsense, I'm saying read whatever they're saying, understand the context, and then if there is something that also aligns with you that you think is valid, then follow it. Don't follow other people's advice because it is other people's advice. Follow other people's advice if it makes sense to you. For instance, आज हमने बोला 5 घंटे की नींद से काफी हो जाना चाहिए, but then if you have the physiology of somebody who if you sleep for 5 hours
you will not be able to operate at complete efficiency and you've tried it for 1 week or you've tried it for 1 month और 5 घंटे सोने के बाद तुम्हारी शरीर नहीं काम करता, तो ठीक है फिर 6 घंटे सोएंगे। ऐसा थोड़ी कि हम सारी बॉडी टाइप्स और हम सारे फिजियोलॉजीज के बारे में इतने एक्सपर्ट हो रहे कि 5 घंटे में चल ही जाएगा काम। माई एडवाइस इज 5 घंटा, अगर वो उस पर तो मैनेज कर पा रहे तो ग्रेट, अगर नहीं मैनेज कर पा रहे दूसरी जगह चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने जो बोल दिया वो ब्रह्म सत्य है। आई एम नॉट, हम अपनी बात पे आई एम नॉट गोइंग टू स्टे वेरी वेरी कि ये डेटा पॉइंट मार दिया तो ये डेटा पॉइंट मार दिया, तो भीड़ की तो बिल्कुल ही नहीं सुननी चाहिए। सर हम सिर्फ यही जानते सर, आपका तो सर एक्सपीरियंस भी है और आप कैट में तो बहुत मतलब अच्छी तरीके से रिजल्ट भी करते हैं रेगुलरली सर, तो इसीलिए सर तो कैट के बारे में जानते हैं। जो लोग जो लोग हैं उनसे तो बहुत ही बेहतर जानते हैं सर। भाई जो लोग दूसरा है उससे बहुत ही बेहतर जानते हैं, यस, दैट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू कि हम हर चीज के बारे में पूरा एकदम बेहतर ही होंगे। मे बी व्हाट अदर पीपल आर सेइंग इज आल्सो करेक्ट, इनफैक्ट मोर करेक्ट देन व्हाट आई एम डूइंग। जैसे अभी था अपना शुरुआत में प्रियांश था ना शायद, जिसने बोला था कि एक अच्छा कैंडिडेट 2.5 सेट्स कर सकता है। मेरे से 2.5 सेट नहीं हुआ था मेरे ही स्लॉट के अंदर। आई थिंक मेरे लास्ट ईयर DILR में कितना 99.3 समथिंग परसेंटाइल था। So there were some 0.7% of people who did better than me in the DILR section. When it comes to preparation, I have insights, I have opinions, I have ideas that I'm very, very sold on. उसके बारे में हम बता देंगे। बाकी the group think, पहले you needed to have some sort of credibility in order to make recommendations. Now all you need to have is a random YouTube channel, वो भी कहीं भी खड़ा होकर ज्ञान दे देता है। You would have, as consumers of information, I would implore you to be a little more circumspect in accepting information from people who are not that, let's say, reliable. Not that every advice they give is bad. The nuance is so fine. Not that every advice they give is bad, but not every advice they give is right as well. Which is also true for me. Not every advice I give is right. Not every advice I give is wrong. But you would have to be a little more circumspect. हर किसी की बात सीधा सीधा मत मान लो कि कैट लेवल का पेपर नहीं है तो नहीं देना चाहिए। स्टार्ट क्वेश्चनिंग व्हाट इज कैट लेवल। अगर कैट लेवल ही डिफाइंड नहीं है देन दिस एडवाइस इज नॉट सेंसिबल, नो, फिर लाइट लेंगे उसको। मतलब बहुत लोग मतलब सर हम जो मतलब जो भी हम सुने और जो भी लिटिल बहुत कम देखे हैं सर, उसमें लगता है कि सर क्रैक में जो क्वेश्चंस है सर, उसमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि अभी तक उतना डिफिकल्ट कैट में आया ही नहीं होगा, इतना लगता है। भाई यही तो हम बोल रहे, तेरे को लगता है ये तेरे को आफ्टर द टेस्ट क्या ये सवाल तेरे रेंज में था? अगर नहीं था तो हमने कुछ सीख लिया, अगर था तो हमने मिस कर दिया, ये मेरे लिए लर्निंग पॉइंट है। तू अपने पे ध्यान देना, कैट में ये आज तक आया है या नहीं है। पिछले साल का जो क्वांट आया था पेपर में, वैसा क्वांट का पेपर कभी नहीं आया था कैट में। तो हो गया था सर, मुझे कुछ मालूम नहीं। अरे भाई तेरे को मालूम नहीं कैट का पेपर कैसा आएगा, तेरे को अपना स्तर तो मालूम है ना। मेरे को इतना तक आता है। अब हम जब टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद एनालिसिस करेंगे, वहां पे बस ये चेक करेंगे भाई मेरे लिए सीखने के लिए कुछ था कि नहीं। अगर मेरे लिए सीखने के लिए था तो बढ़िया, अगर मेरे लिए सीखने के लिए नहीं था तो ठीक है, अगला टेस्ट देंगे। क्रैक्यू का पेपर अच्छा है कि नहीं, क्रैक्यू का पेपर देना चाहिए कि नहीं, पैसे तुमने दिए ही है क्रैक्यू को, व्हाई वुड यू वेस्ट दैट मनी। आराम से टेस्ट दो, focus on your improvement. If Shantana, from one test to the other test, if you're not making similar sort of errors, you're expanding upon the knowledge base that you have, you're doing excellently well. Even if your score in particular mocks, let's say एक मॉक तुमने दिया 70 आया और अगले मॉक में तुम्हारा 63 आया, लेकिन the errors you made were of new type, you did not miss out on any easy question, your second performance is better regardless of the score. क्योंकि scores across mocks are not comparable, question types are not comparable. The only thing that you can potentially work upon is the kind of errors you make. बस उतने पे ध्यान दे। मतलब keep your focus on Shantana, don't keep your focus on ये टेस्ट अच्छा है कि नहीं, वो टेस्ट अच्छा है कि नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें तुम कंट्रोल कर भी नहीं सकते। मैं सिर्फ सोच रहा था कि अगर कैट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो सर बेकार में क्यों सर ट्राई करे सर, जो कैट में आता है सर वैसा ही सर लगभग है। जो कैट में आता है बताना तो कैट में क्या आता है, किसको पता है कैट में क्या आता है? तो आपसे पूछे सर, नहीं तो सर मैं खुद ही डिसीजन ले लेता कि नहीं देना है क्रैक सर, लेकिन देना मतलब अगर इमोशनली जारिंग हो रहा है, अगर दुख हो जा रहा है कि भाई नंबर देके खराब लगता है,
तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए कुछ दूसरे टेस्ट दे देना, लेकिन डोंट वॉक अवे फ्रॉम अ टेस्ट सीरीज बिकॉज द क्वेश्चन सीम डिफिकल्ट, वो दैट इज नॉट ए गुड रीजन टू वॉक अवे। बाकी अगर कोई दोस्त यार हो तो उसको दिला देना क्रैक क्यू, उसको किसी के साथ एक्सचेंज कर लेना, फाइंड अ पर्सन जिसके पास आईएमएस का टेस्ट सीरीज, उसको बोलना भाई सर हम तेरा आईएमएस दे देंगे, तू मेरा क्रैक क्यू दे दे, उसकी जिंदगी में तबाही ले आ। नहीं सर, आपका आईएमएस का ऊपर क्या सर मतलब ओपिनियन है सर? आईएमएस कैसा टेस्ट सीरीज करता होगा? भाई मेरा ओपिनियन है हर जगह का टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है। हम टेस्ट सीरीज की गुड और बैडनेस पे नहीं जा रहे, सब टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है। एवरी टेस्ट सीरीज हैज गुड थिंग्स, सो गिवन दैट आई हैव पोटेंशियल टू लर्न एवरीवेयर, I think all test series are great. There is no superior test series. सर मतलब आप बोल रहे हैं कि आईएमएस का टेस्ट सीरीज अच्छा है सर, उसको हम प्रैक्टिस हम ये भी बोल रहे हैं क्रैक्यू का टेस्ट सीरीज भी अच्छा है, क्रैक्यू का सर। टेस्ट सीरीज भी अच्छा है, और आईएमएस का टेस्ट सीरीज भी अच्छा है, टाइम का टेस्ट सीरीज भी अच्छा है, सीएल का टेस्ट सीरीज भी अच्छा है, सब जगह का टेस्ट सीरीज अच्छा है। क्योंकि टेस्ट सीरीज का अच्छा या बुरा होना इस पे निर्भर करता है कि उस टेस्ट को देने के बाद हम उसका एनालिसिस कितने विलिंगनेस और तन्मयता से कर रहे हैं। अगर हम अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं तो मेरे पास कहीं का भी टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज अच्छा है। सर एक्चुअली हाँ सर, ये ओके सर यही जान रहे थे सर कि सर यही मतलब सर कि जैसे आप बोले कि हर सर हर टेस्ट सीरीज भी का मतलब अगर होना है तो हर टेस्ट सीरीज से ही गेन कर सकते हैं, हो सकता है। तो इसमें ही सर मेरा कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, लास्ट थिंग व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम? सर शांतनु। शांतनाव। यस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब तनाव मेरे को पता चल रहा है, बट देन आई डोंट थिंक तनाव वुड बी पार्ट ऑफ सम नेम। नो, व्हाट इज दिस शांतनाव? सर इसका मतलब है सर पीसफुल स्काई सर, जैसे। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलो जनता, गो होम, हैव फन, स्लीप, ओके बाय, see you again next to next week, 2 weeks बाद, whatever next topic is there लिखी जाएगी। बाय बाय।